नमस्कार, मैं उपमा भाटिया आरसीआई के नवशिखर चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। ड्यू टू many of the prevalent causes may be genetic or hereditary, majorly recognized disability occurs is visual impairment, and related to this is our today's topic, that is concept, nature and characteristics of visual impairment. And to discuss this topic we have with us today Dr. Sudeep Kumar Dubey, who is the assistant professor at Dhirubhai Deshmukh College of Special Education. Welcome sir. अगर आप हमारे एक्सपर्ट से इस विषय में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर जो है 1800112008। हमारा फ़ोन नंबर है 26511613 और हमारा फैक्स नंबर है 26511609। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जो है Rehab Council, that is REHABCOUNCIL.nic.in और आप हम अपने सजेशंस और टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rehabstd, that is rehabstd@ndc.vsnl.net.in। तो आइए जानते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट बेसिकली है क्या। जी सर। Well, as you have rightly said, it is the mainly occurring disability in this world, and according to the International Classification of Disease, this visual functioning is of 4 types. 4 तरह का होता है ये। तो इसमें first type is normal vision, then moderate visual impairment, severe visual impairment, and finally we have got this blindness. और ये जो बात की जा रही है नॉर्मल विजन की, नॉर्मल विजन या विजुअल इम्पेयरमेंट, सीवियर और दिस मॉडरेट, इस सबको समझने के लिए वी नीड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स. हाउ वी कैन डिफाइन दैट अ पर्सन इज हैविंग नॉर्मल विजन, हाउ वी कैन से on what basis we can say the person is having visual impairment, whether he is having low vision or totally blind. So there are certain concepts where we would like to go, and before going to that place we will just read out this for classification according to the, as I told you, International Classification of Disease. First is normal vision, second is moderate visual impairment, third is severe visual impairment, finally we have got blindness. And between these two, moderate and severe, we club together and call it low vision. So it means we have got 3 types of visual functioning. First is normal vision, second is low vision, and third is blindness. To understand these concepts we need certain technical words, and they are two concepts we need finally. The one is visual acuity and the second is field of vision. So what is visual acuity? Visual acuity को दृष्टि तीक्ष्णता हिंदी में कहा जाता है, and visual acuity is defined as generally we go to the ophthalmologist and so eye clinics to get our eye test done. What there generally happens that a doctor in the clinic has certain chart there, Snell's chart it is called, and at the distance of 6 meters from the examining it is held there. So what happens according to this visual acuity testing I am telling you, what is this? On the E chart, or what I am calling a Snell chart, there are numerous E's written down there. At the top if you see the very big E is there, and before just below that a number is written which is called 60. It means that E is readable. A person with normal vision can read that E from a distance of 60 meters, and if you go down that Snell chart you will find different E's of different sizes, and उसके नीचे आप जब जाएंगे you will find E with 48 written below it, then 36, then 24, 12, 6. इस तरह से आपको ईज वहाँ पे मिलेंगी. इन सब ईज का मतलब ये है जो नंबर उसके नीचे लिखा हुआ है means that person who is having normal vision can read that E from that particular distance. As I told you, सबसे ऊपर जो है at the top of the Snell's chart
the E is readable from the distance of 60 meters, और जो सबसे नीचे है वो 6 मीटर से उसको पढ़ सकता है नॉर्मल विजन वाला। अब प्रॉब्लम ये है कि जो दृष्टिबाधित है, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा जो है या कोई व्यक्ति जो है जब आपके पास आया, व्हेन वी गेट दैट केस, दैट वी keep them sitting at the one place in the clinic at a distance of 6 meters. The distance is fixed, and if the clinic is not that in the length, then what we can do is we put that Snell chart at the distance of 3 meters, and again on the overhead of the patient we have a mirror, so that the mirror image is formed at back of the image at this 3 meters at the back, that all together makes 6 meters. So testing distance is 6 meters. It should be there. Now what is happening कि उस से ये कहा जाएगा कि you please read out those E's. अभी उस बड़ी E को, जो सबसे बड़ी E है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसको 60 मीटर दूरी से पढ़ लेना चाहिए नॉर्मल विजन वाले को, और जो सबसे नीचे है उसको 6 मीटर से। तो सबसे नीचे से शुरू करते हैं, और सबसे नीचे वाली जो E है उसको 6 मीटर की दूरी से पढ़ना है, सबसे ऊपर वाली जो दूरी है उसको 60 मीटर की दूरी से पढ़ना है। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा केस है, जो हमारे पास बच्चा है या ये जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है वो हमारे पास आया आई टेस्टिंग के लिए, सो हम बड़ी ई उसको दिखाएंगे और उसको ये कोशिश करेंगे देखने की कितनी दूरी से ये पढ़ पाता है। तो जैसे मान लीजिए सबसे बड़ी ई वो 60 मीटर से नहीं पढ़ पाया और उसको पढ़ने के लिए पास में आना पड़ा, और सपोज करिए कि उसको 6 मीटर की दूरी से वो केवल बड़ी वाली ई पढ़ पाया, सबसे ऊपर वाली ई पढ़ पाया। इट मीन्स हिज विजुअल एक्विटी इज 6/60। ये विजुअल एक्विटी की मेजर है, एंड विजुअल एक्विटी मीन्स दृष्टि तीक्ष्णता इज द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी द डिटेल। जो भी आपके सामने पिक्चर होगी उसकी बारीकियों को देखने की क्षमता को हम विजुअल एक्विटी से कहते हैं, और इसको मेजर करने के लिए ये ई चार्ट हमारे सामने है। सो ये हमारे सामने रखा हुआ है, हमारे पेशेंट है, उससे हम कहेंगे कि आप इसको पढ़िए। सो एज आई टोल्ड यू, इफ दैट टॉप मोस्ट ई is read by that person from only 6 meters, the visual acuity measure is said to be 6/60. Normally क्या होना चाहिए था कि उस ई को 60 मीटर की दूरी से पढ़ना चाहिए था। बाकी और भी डिस्टेंस की वहाँ पर बीच में ईज हैं, उनके बारे में अलग अलग विजुअल एक्विटी के मेजर्स हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे विजुअल एक्विटी की रेंज की। दैट विजुअल एक्विटी रेंज मे बी फ्रॉम -PL. PL means perception of light. Minus means there is no perception of light. Even the person is not able to see whether it is day or night. अभी दिन है या रात है वो नहीं बता पा रहा। Whether the light is on or off. लाइट इसमें जल रही है या नहीं जल रही है, यदि ये भी नहीं बता पाता कोई व्यक्ति या बच्चा, तो हम कहेंगे कि उसका -PL केस है। सो -PL से उस रेंज को हम शुरू करेंगे। Then we move towards +PL. It means he is able to tell you कि हाँ जी इसमें लाइट है, ऑन है या ऑफ है, ये बता पा रहा है। It means if it is the case, it is +PL. So -PL to +PL. If we plot this range on a straight line, so at the leftmost you put -PL, then we come to +PL. Then 6/60. 6/60 means कि उस व्यक्ति की दृष्टि तीक्ष्णता सबसे बड़ी जो ई जिसकी बात अभी हमने ई चार्ट पे आपसे की, उसको वो केवल 6 मीटर की दूरी से पढ़ पा रहा है, जिसको कि एक सामान्य व्यक्ति 60 मीटर की दूरी से पढ़ लेता। 6/60. Then move further we move, and there is one point called 6/18. 6/18 visual acuity means there are so many E's on the E chart. There is one which is rated with 18 meters distance. मीन्स एक ई ऐसी होगी जिसको कि नॉर्मल विजन वाला 18 मीटर की दूरी से आसानी से पढ़ लेगा। लेकिन जो हमारे साथ जो बच्चा आया हुआ है वो उस ई को पढ़ने के लिए उसको उस ई से केवल 6 मीटर की दूरी तक आना पड़ता है। मीन्स उसकी विजुअल एक्विटी मेजरमेंट इज 6/18। फाइनली एट द राइट मोस्ट 6/60। सबसे बड़ी ई को पढ़ना चाहिए था 60 मीटर से, लेकिन वो केवल 6 मीटर से पढ़ पाया, तो उसकी मेजरमेंट वो 6/60 होगी।
तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। और जो सबसे अच्छा विजन है, जो जिसे नॉर्मल विजन हम कह रहे हैं, उसको 6/6 कहते हैं। 6/6 का मतलब जो सबसे बार नीचे वाली जो ई था, जिसको कि हमने 6 मीटर की दूरी से पढ़ना नॉर्मल विजन वाला करेगा ऐसा मान के चल रहे थे, उसको हमारे साथ जो बच्चा आया है वो भी उसको 6 मीटर से ही पढ़ रहा है। इट मीन्स हिज विजन इज नॉर्मल। सो वी हैव गॉट द होल रेंज ऑफ विजुअल एक्विटी। द नॉर्मल विजन से स्टार्ट होके -PL तक चला गया। अब इसमें कौन कहाँ आएगा, विजुअल एक्विटी का मेजरमेंट क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन he will be categorized as whether he is having normal vision or low vision or blindness. So इसकी जो रेंज की जो बात हम अभी आपसे कर रहे थे वो ये है कि from -PL across this +PL to 6/60, ये जो रेंज है इसमें हम कहेंगे ब्लाइंडनेस है, टोटली ब्लाइंड इसको कहा जाएगा। एंड फ्रॉम 6/60 से बेटर अप टू 6/18, 6/18 तक की जो रेंज वाले लोग हैं वो हम लो विजन में रखेंगे। और जो उससे बेटर है 6/18 ऑनवर्ड्स अप टू 6/6, दे आर कॉल्ड एज हैविंग नॉर्मल विजन। इसमें एक कंडीशन और भी है, और वो ये है कि ये जो टेस्टिंग हो रही है ये सभी डिस्पाइट ऑफ ऑल द करेक्शंस बीइंग ऑलरेडी डन, यदि मैं चश्मा लगाता हूँ तो मैं चश्मा लगा के ही उस टेस्ट को करूँगा। यदि कभी कभी डॉक्टर्स ऐसा भी कहते हैं कि विदाउट स्पेक्स भी डन दिस टेस्ट ऑफ विजुअल एक्विटी, वो भी करते हैं। तो विद स्पेक्स, विदाउट स्पेक्स, ऐसे भी करेंगे। इवन विद वन आई और विद सेकंड आई, एक आंख बंद करेंगे, कहेंगे आप राइट आई की आपकी विजुअल एक्विटी टेस्ट कितना है, ये टेस्ट करना चाहते हैं। राइट आई बंद किया तो ये जानना चाहते हैं कि लेफ्ट आई की विजुअल एक्विटी कितना है। सो विजुअल एक्विटी मेजर इज डन विद सो मेनी कंडीशंस, लेफ्ट आई, राइट आई, बोथ आई, स्पेक्स ऑन, स्पेक्स ऑफ, ये सब कंडीशंस हैं जिसमें हम विजुअल एक्विटी का मेजरमेंट करते हैं। ये विजुअल एक्विटी की बात हुई। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज फील्ड ऑफ विजन। इसके बारे में ऐसा है कि जैसे आपको मालूम है कि आई एम लुकिंग स्ट्रेट एट द वॉल एंड माई फोकस इज देयर एट माई आई लेवल, वहाँ पर मेरा फोकस है। एंड विदाउट टर्निंग माई हेड और माई आईज, ना तो मैं अपनी आंखों को घुमा रहा हूँ और ना ही अपने सिर को घुमा रहा हूँ, आई कैन सी what is happening at my right, and I can also see what is happening at my left. बायां और दाईं तरफ, दोनों ही तरफ मैं देख सकता हूँ बिना अपनी आंखों को या मेरे अपने सर को घुमाए हुए मैं क्या गतिविधियां वहां पर हो रही हैं, we can see. So this is normal field of vision and it comes to 180 degree. 180 अंश का एक कोण आप समझ सकती हैं कि वो बनेगा, ये नॉर्मल विजन है। अब विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ फिर से ये रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, और ये रेस्ट्रिक्ट होते होते एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिक्सेशन, इफ वी टॉक ऑफ दैट इन द डेफिनेशन टर्म्स, देन इट इज 10 degrees टूवर्ड्स राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिक्सेशन एंड ऑल्सो 10 degrees टूवर्ड्स लेफ्ट। सो कुल मिला के वो 20 डिग्री का यदि हमारा रेस्ट्रिक्टेड फील्ड ऑफ विजन होता है, तो ये मतलब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि फील्ड ऑफ विजन है क्या। वो 180 डिग्री नॉर्मली होना चाहिए, और वो कम होते होते हमारा हो सकता है कि 20 डिग्री हो सकता है 30 डिग्री हो सकता है उससे और भी कम हो जाए। सो ये डिपेंड करेगा कि उस जो हमारे पास जो बच्चा आया उसकी स्थिति क्या है। सो बेसिकली वी नीड दीज टू कॉन्सेप्ट्स टू बी टेस्ट टू बी डन, व्हाट इज विजुअल एक्विटी एंड व्हाट इज विजुअल फील्ड ऑफ विजन. Based on these two, we can categorize whether the person is having blindness or low vision. ओके सर, Yes. तो जैसे आपने विजुअल इक्विटी की बात की, तो आपने बोला कि मान लीजिए अगर -PL से लेकर जो हमारा 6/60 तक का जो बच्चा है जी, वो हमारा ब्लाइंड माना जाता है, और 6/60 से लेकर 6/18 तक का जो है वो लो विजन वाला बच्चा माना जाता है। जी हाँ। तो ऐसे ही हमारे पास फील्ड ऑफ विजन में भी कुछ कैटेगरीज होंगी हाँ जी इस हिसाब से, तो आप वो भी प्लीज समझाएंगे सर? हाँ, उसमें ऐसा है कि एक्चुअली डेफिनेशन कई एजेंसीज ने दी हुई हैं। सो WHO की डेफिनेशन में एक जगह आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा, विल लेटर ऑन डिस्कस दिस, कि अप टू
कहीं कहीं 20 डिग्री पढ़ने को मिलेगा आपको विद ब्लाइंडनेस। लो विजन के लिए कहीं कहीं वो 30 डिग्री तक मान्य है। और जो यदि लो विजन की एक वर्किंग डेफिनेशन और है वो भी हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे, तो उसमें कहीं भी ये विजुअल एक्यूटी मेजर या फील्ड ऑफ विजन का मतलब जिक्र नहीं है। उसमें वो लो विजन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि भाई इट इज़ वेरी रिड्यूस्ड विजन फंक्शनिंग उसकी हो जाती है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज करेक्शंस बीइंग ऑलरेडी डन। ये सब करने के बावजूद भी वो नॉर्मल विजन नहीं हो पाता। कुछ लोगों ने ऐसे डिफाइन किया। Yeah, some people define it just in the case of like sightedness only. They say कि हाँ उसकी sightedness reduce हो गई है। हाँ, मतलब Normal देखने से। की क्षमता घट गई जी। है ना। और जो नॉर्मली जो बच्चा उसकी उम्र वाला, उसका जो पीयर ग्रुप वाला जो बच्चा होगा, जिससे तमाम कार्यों की वो विजुअल जो टास्क्स हैं उनके करने की जो उसे आशा की जा रही होगी उनको वो नहीं कर पा रहा है, देन ही इज कॉल्ड ए विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड। ऐसा है। तो सर पहले आपने कैटेगरीज हमें बेसिकली बताई कि कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए एक बच्चे को विजुअल इम्पेयर्ड या फिर उसके विजुअल एबलनेस को कैटेगराइज करने के लिए वो बताए, जो कि थे पहला विजुअल इक्विटी और दूसरा हमारा फील्ड ऑफ विजन। तो आगे जानेंगे हम फील्ड ऑफ विजन के बारे में सर, और एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ जरूर, फील्ड ऑफ विजन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने आपसे जैसे बताया कि उसकी जो रेंज है वो 180 डिग्री है। तो अगर 180 डिग्री है तो वो फिर से नॉर्मल विजन होगा, और वो घटते घटते यदि 20 to 30 डिग्री आ जाता है, then it will be again categorized as low vision, having some low vision। और 20 डिग्री और वर्स है, यदि 20 डिग्री से भी कम है, 20 डिग्री और उससे कम है, तो वो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा और आपका समय लूँगा और ब्लाइंडनेस की जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ी सी बात करेंगे कि a person will be called blind if any one of the three conditions is fulfilled। 3 आगे कंडीशंस दी हुई हैं, उनमें से कोई अगर एक भी फुलफिल करता होगा वो व्यक्ति, तो उसे हम टोटली ब्लाइंड की कैटेगरी में लाएंगे। और वो क्या कंडीशंस हैं? नंबर 1 टोटल एब्सेंस ऑफ लाइट, जिसको आप -PL थोड़ी देर पहले हमने कहा। टोटल एब्सेंस ऑफ लाइट का मतलब ये है कि ही इज नॉट इवन एबल टू टेल यू वेदर इट इज डे टाइम और नाइट, रात है या दिन है, ये बताना असंभव है उसके लिए, नहीं बता पा रहा है। बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा है, नहीं जानकारी है। टोटल एब्सेंस ऑफ लाइट। देन विजुअल एक्विटी मेजर की बात होती है उसमें। विजुअल एक्विटी मेजर मीन्स इफ द विजुअल एक्विटी इज इन बिटवीन -PL to 6/60, यदि यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है उस बच्चे की विजुअल एक्विटी के मेजर, तो भी उसको हम टोटली ब्लाइंड की कैटेगरी में लाएंगे। एंड फाइनली द फील्ड ऑफ विजन, इफ इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू लेस देन 20 डिग्री मीन्स 10 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिक्सेशन टूवर्ड्स राइट एंड 10 डिग्रीज टूवर्ड्स लेफ्ट। यदि 20 डिग्री और उससे कम का उसका फील्ड ऑफ विजन है तो भी हम उसको दृष्टिबाधित ब्लाइंड कहेंगे। दृष्टि जिसका टोटली ब्लाइंड जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो टोटली ब्लाइंड कहने के लिए इन 3 में से यदि कोई एक भी कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं तो वो ब्लाइंडनेस की श्रेणी में आ जाता है। जी, ये इसकी डेफिनेशन यदि मैं कहना चाहूँ तो ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन आप बताएंगे। तो सर इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि बेसिकली जो बच्चे होते हैं या फिर जो पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट है उनको जाना कैसे जाएगा, मतलब कि वो विजुअल इम्पेयर्ड है कोई बच्चा या फिर कोई आदमी, कैसे पहचान सकते कैसे हैं? पहचाना जाएगा? हाँ, ठीक कर रही हैं आप। एक्चुअली जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो गुणधर्म है, जो लक्षण है उस बच्चे के, उसके आधार पे हम उसको पहचान सकते हैं। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ और मेरी क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको मैं ऑब्जर्व करूँगा, तो ऑब्जर्वेशन में एक फार्मूला देते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए एक फार्मूला देते हैं। देयर इज अ चेकलिस्ट प्रिपेयर्ड बाय NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इन लोगों ने एक चेकलिस्ट तैयार की हुई है और उसमें बेसिकली दे टॉक ऑफ अ फार्मूला विच इज कॉल्ड ABC। A for appearance, B for behavior and C for complaints। ऐसा हमने उसको
बांट लिया है अपनी सुविधा के लिए। सो जहाँ तक अपीयरेंस की बात है कि बच्चा कैसा दिखता है, तो उसमें क्लास में बच्चा है, मान लीजिए कि कुछ आप उसको देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन आपने किया, उससे बहुत वाटरिंग आइज़ है या बहुत डिस्चार्ज हो रहा है, आंखों से बहुत कीचड़ निकल रहा है या लगातार पानी निकलता चला जा रहा है, इस तरह के। और ऑब्जर्वेशन में आप ये भी देख सकते हैं कि उसके चलने फिरने में आप देखेंगे कि जगह जगह टकरा रहा है, या कि लेने के लिए बड़ा परेशान है या बार बार अपने साथी से पूछ रहा है कि क्या लिखा है, क्या लिखा है। दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड बाय द टीचर इन द क्लासरूम। यदि ऐसा है और ऐसी ये जो लक्षण है यदि परसिस्टेंट है, लगातार हैं, काफ़ी समय तक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कि मौसम परिवर्तित हुआ और मुझे कंजक्टिवाइटिस हो गया मान लीजिए, उस परिस्थिति में हो सकता है कि टेम्परेरी हमारी इस तरह के लक्षण पाए जाएं। लेकिन यदि हमारे ये लक्षण परमानेंटली पाए जा रहे हैं, काफ़ी समय में उसमें मैं से परेशान हूँ, तो डेफिनेटली एक ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसको विजन प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ अपीयरेंस उसका, कुछ उसका बिहेवियर मैं फिर से एक बार उसका व्यवहार देखेंगे आप कक्षा में। जैसे मान लीजिए कि बच्चों से बार बार पूछना कि भाई क्या लिखा हुआ है ना, और उसको कुछ कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं, कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं। कुछ शिकायतें उसकी ऐसी हो सकती हैं कि सर में दर्द है या आंखों में दर्द है या मुझे ब्लैक बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरह की लगातार यदि वो शिकायतें करता चला जा रहा है, तब भी हम उसको एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं उसको कि इसको दृष्टिबाधा की प्रॉब्लम हो सकती है। और डेफिनेटली फिर यदि ऐसा पाते हैं तो हम उसको रेफ़र करेंगे डॉक्टर को, वहाँ उसका प्रॉपर चेकअप होगा और पता चल पाएगा कि और भी उसके साथ यदि कोई समस्या है। सो एक चेकलिस्ट है हमारे पास, इसको मैं आपके सामने रखता हूँ। टू आइडेंटिफाई अ चाइल्ड विद विजुअल प्रॉब्लम, क्रॉस्ड आइज और टर्निंग इन और आउट। आप कई बार ऐसा देखते हैं कि बच्चों का जो पुतली है वो बहुत तेज़ी से हिल रही है, एक जगह फिक्स नहीं हो पा रही है। जैसे एक निस्टैग्मस केस होता है ना, उसमें भी वो मतलब फोकस नहीं कर पाता किसी एक जगह, लगातार उसकी आंख हिलती जुलती रहती है। सो टर्निंग इन और आउट, वॉटरी आइज, एज आई टोल्ड यू, पानी बहुत तेज़ी से डिस्चार्ज हो रहा है। रेड आइज, आंखें लाल हैं। फिर से मैं यहाँ एक बार दोहराना चाहूँगा कि रेड आइज मे बी टेम्पररीली ऑल्सो, कुछ समय के लिए भी हो सकती हैं, लेकिन अगर वो जो हमारे टेम्पररी कॉजेज़ थे उसके बावजूद भी लंबे समय तक हम देखें कि आंख लाल है या उसकी आईलिड्स जो हैं वो स्वेलन हैं या रेड हैं या उसमें कुछ और समस्या है, इस तरह की ऑब्जर्वेशंस में ये सब आएंगी बातें। देन क्लाउडिंग ऑफ पीपल, एक्सेसिव ब्लिंकिंग, बहुत ज़्यादा पलक झपकाना, ये भी उसका एक बिहेवियर है जो टीचर को समझ में आएगा कि भाई इस बच्चे को कुछ समस्या हो सकती है। देन वी हैव क्लमजीनेस एंड ट्रबल वॉकिंग इन ए न्यू एनवायरनमेंट, किसी नई जगह में जाने में, चलने फिरने में उसको परेशानी महसूस हो रही है या वो तमाम बाधाओं से बार बार टकरा रहा है। यदि ऐसा है तो भी हम उसको मान सकते हैं कि भाई इसको कुछ देखने में समस्या हो सकती है। और ये सब हमारे बहुत ही प्रिलिमिनरी एक गेस वर्क है टीचर के लेवल पर। हम कोई डिसीजन पे जंप नहीं करेंगे, हम जल्दबाजी में ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ भाई ये दृष्टिबाधित है, ऐसा नहीं है। हम उसको प्रॉपर आई चेकअप के लिए भेजेंगे, वहाँ से हमको जो रिपोर्ट मिलेगी, वहाँ से जो मेडिकल चेकअप जिसे कहना चाहिए, उस पे हम फिर फाइनली जाना चाहते हैं। ये तो मैं केवल एक क्लासरूम में टीचर की, क्योंकि हमारे पास 40 बच्चे होते हैं क्लास में, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको कि देखने में समस्या है या होमवर्क नहीं करके लाता कभी कोई बच्चा। हो सकता है कि मैं जब कभी भी लिखने पढ़ने बैठता हूँ मुझे बहुत सिर में दर्द होता है, तो मेरा पढ़ने में या लिखने में मन नहीं है। यदि आपको ऐसा, अध्यापक को यदि ऐसा लगे कि कोई छात्र ऐसा है जो बहुत पिछड़ रहा है, अपना काम नहीं पूरा करता, इस तरह की समस्याएं भी यहाँ कंसिडर की जाएंगी।
ये तो और- बेसिक लेवल हो गया सर, जो कोई टीचर क्लासरूम में देख सकता है या पेरेंट्स जो घर पे देख सकते हाँ जी, हैं हाँ जी, बच्चों हाँ में, वो ये चीज़ें हैं सर। जी। उसके बाद के लिए, इसके बाद हम क्लिनिकल असेसमेंट पे जाते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली मैं ये चाहूँगा कि अध्यापक या घर में पेरेंट्स उसको यदि पाते हैं कि भाई इनको तमाम परेशानियाँ हो रही हैं, टेलीविज़न बहुत पास से बैठ के देखना है। यदि ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो स्क्रीन पे जाके देखने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ समस्या हो सकती है। तो हम नहीं कोई निर्णय लेंगे, बेटर ये होगा कि हम प्रॉपर उसका चेकअप कराएं और पता करें। उसके आगे जैसे होल्डिंग वंस हैंड इन ऑकवर्ड पोजीशन, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हम धूप में निकले, अचानक अभी अंदर थे धूप में निकले, तो हमको धूप की से बड़ी परेशानी होती है। या कुछ और भी इसमें बात की जाएगी, कुछ लक्षण ऐसे भी पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी आंखों में उंगली डालूं, आई पोकिंग इसको कहते हैं, आंखों में उंगली लगातार डालता रहूं, तो उसमें ऐसे कुछ लक्षण, आंखों में उंगली डालना, उससे भी ऐसे पता चलता है कि हो सकता है कि इसको धूप से या अन्य परिस्थितियों से परेशानी है, जिस वजह से ये जो विजुअल जो जितना स्टिमुलस है, जितना दृष्टिमूलक जो उद्दीपन है, उससे हमको परेशानी है। हमारे सामने कोई देखने की चीज़ है, मैं परेशान हो रहा हूँ, तो मैं ज़रूर उससे बचना चाहूँगा, अपनी आंखों को ढकना चाहूँगा, या कुछ और भी कर सकता हूँ, आंखों में उंगली डाल सकता हूँ, या आंखों को कवर करने की कोशिश कर सकता हूँ। ऐसे भी कुछ उनके पास मतलब उनके ऑब्जर्वेबल बिहेवियर हो सकता है। देन वी मूव टू दिस एक्सेसिव रबिंग ऑफ आइज, आंखों को मलना, बहुत ऐसे भी करते हुए बच्चे मिलेंगे। और होल्डिंग मटेरियल वेरी क्लोज टू द आई, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ता हूँ क्लासरूम में, मान लीजिए मुझे कुछ पढ़ने के लिए कहा गया, वो जो बुक है उसको मैं बहुत आंखों के करीब ले जाता हूँ। वैसे तो जो नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ रीडिंग है 25 to 30 सेंटीमीटर ऐसा बताया गया कि इतनी दूरी से हम उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन यदि किसी बच्चे में ऐसा देखा जाए कि बहुत आंखों के पास ले जाके पढ़ने की कोशिश करता है या पढ़ना चाहता है, कीपिंग द मटेरियल वेरी क्लोज टू द आई, तो देन अगेन वी मे हैव द आइडिया कि ही मे बी हैविंग सम डिफिकल्टी इन सीइंग। देन कंप्लेंट्स ऑफ हेडेक, नोजिया, डिजीनेस, सिर दर्द की शिकायत, आंखों में दर्द की शिकायत, ऐसी वो करेगा। एंड पेन इन द आई, आंखों में दर्द। तो कुछ कंप्लेंट्स, कुछ उसकी शिकायतें, कुछ उसका व्यवहार, और कुछ आपके निरीक्षण, अपीयरेंस उस बच्चे का, इस पर निर्धारित होकर जैसे मैंने आपको बताया कि एक चेकलिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। और यदि इन ज़्यादातर प्रश्नों के जवाब हाँ में आए कि हाँ जी ऐसा करता है और लंबे समय तक ऐसा परसिस्ट करे, देन कुछ हम आइडिया लगा सकते हैं। देन वी रेफर द केस टू द फॉर द मेडिकल चेकअप, ऐसा हो सकता है, दिस कैन बी डन। ओके, तो हमने बेसिकली पहले जाना कि विजुअल इम्पेयरमेंट बेसिकली होता क्या है, उसके बाद उसके बेसिक क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, जैसे कि एक हमारा जो नॉर्मल विजन होता है, उसके बाद एक लो विजन होता है, फिर एक ब्लाइंडनेस की कैटेगरी आती है। ये हम किस बेसिस पे हम तय करते हैं कि एक इंसान का या किसी भी बच्चे का लो विजन है, नॉर्मल है या फिर वो ब्लाइंड है। हमने वो केसेस जाने जो थे विजुअल एक्विटी और हमारा फील्ड ऑफ विजन। उसके बाद हमने जाना कि हम किसी बच्चे को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो विजुअल इम्पेयर्ड है या नहीं, जिसके लिए हमें पता चला कि एनसीईआरटी के द्वारा एक चेकलिस्ट भी प्रमाणित की गई है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानने के लिए। इसी बारे में और इन्फॉर्मेशन जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।
us from dreaming. हारता है वो, हार माने जो, we are what we believe in. हम धरती को अंबर से मिला दे, हम उड़ सकते हैं, उड़कर दिखा दे, हम छू ले सितारों को. We can touch the sky. आशा के पंखों पे we can and we will fly. We can and we will fly. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद. अगर आप इस विषय में हमारे एक्सपर्ट से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी राय लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर जो है 1800112008. हमारा फ़ोन नंबर है 26511613 और हमारा फैक्स नंबर है 26511609. अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जो है Rehab Council, that is REHABCOUNCIL.nic.in और आप अपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन या कोई सजेशन हमें मेल भी कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है rehabstd, that is rehabstd@ndc.vsnl.net.in. और हमने जाना अभी तक कॉन्सेप्ट ऑफ विजन के बारे में, इसका कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे किया जाता है उसके बारे में जाना. कैटेगराइजेशन क्या होता है, जैसे कि जिसमें एक नॉर्मल विजन होता है, एक लो विजन और एक टोटली ब्लाइंड होता है. उसके बाद हमने क्लासरूम में या फिर घर पर किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी बच्चे को कि इसको विजुअल इम्पेयरमेंट है या नहीं, वो हमने पॉइंट्स जाने. और अब आगे बढ़ते हैं कॉजेज़ के साथ. तो हम जानेंगे कि बेसिक कॉजेज़ क्या होते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के. सर आप बताएंगे प्लीज़. या दृष्टिबाधा के मुख्य कारणों में यदि मैं भारत की बात करूं, और पहले ये भी बताना चाहूँगा कि दृष्टिबाधा ये तो हो सकता है कि बचपन में हो, कुछ बच्चों को हो, या ज़्यादातर केसेस जो हैं वो ओल्ड एज के होते हैं. तो एक बड़ी उम्र में होने वाली दृष्टिबाधा का मुख्य कारण कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद. इससे बहुत से ब्लाइंडनेस आती है, बहुत से केसेस आपको पाए जाएंगे. एक नेशनल सर्वे के अनुसार यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉजेज़ हैं जिसकी चर्चा करेंगे. नेशनल सैंपल सर्वे ने देखा कि 81% जो ब्लाइंडनेस है, यानी मोर देन 80% आप देख रही हैं, ये एज रिलेटेड है और उसका मुख्य कारण कैटरेक्ट है. मोतियाबिंद की वजह से बड़ी उम्र में दृष्टिबाधा हो रही है. रिफ्रैक्टिव एरर्स only contributing only 7%. Then corneal opacity 3%, glaucoma 2%, trachoma 0.2%, malnutrition 0.04%, and other 6.76%. So it is a study conducted by this National Sample Survey, and on the top of it we have got cataract, which is causing 81% of the blindness. So इसके बारे में सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देना चाहिए. और जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्लाइंडनेस है वो यदि देखिए इसमें एक बात है कि यदि बड़े व्यक्ति को ब्लाइंडनेस है तो यहाँ पर एक ये भी कॉन्सेप्ट विचारणीय है कि यदि बड़े व्यक्ति को दृष्टिबाधा की उम्र उसको कहते हैं कि ब्लाइंडनेस कितने साल रही. तो यदि बड़े आदमी को वो दृष्टिबाधा है तो डेफिनेटली उसकी लाइफ अब कम बची हुई है, तो दृष्टिबाधा की उम्र उसके साथ ज़्यादा नहीं है. लेकिन यदि एक बच्चे को दृष्टिबाधा हुई है
तो जो विजुअल डिसेबिलिटी की जो कहना चाहिए टाइम है वो ज़्यादा है। सो भले ही मतलब दोनों ही तरह की दृष्टि बाधाओं पर हमको विचार इसलिए करना होगा कि यद्यपि ज़्यादा केसेस ओल्ड एज में हैं, लेकिन जो छोटी उम्र में केसेस हो रहे हैं उनके साथ दृष्टि बाधा का समय बहुत लंबा है। सो दोनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जैसे कि बताया कि 80 से ज़्यादा % के कारण वहाँ पर कैटरेक्ट है, सो कैटरेक्ट की सर्जरी कराई जाए और उसके तमाम जो मेडिकल उपचार हैं वो कराए जाएं, उससे बचा जा सकता है कुछ हद तक। देन जिसपे अभी हम ज़्यादा चर्चा करना चाहेंगे वो ये है कि ब्लाइंडनेस अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में जो जिसकी वजह जिसको मेन रीज़न आपने कहा कि रिफ्रैक्टिव एरर्स में क्या है कि 2 तरह की मेनली पाई जाती है। एक तो शॉर्ट साइटेडनेस है और एक लॉन्ग साइटेडनेस है। तो इसमें जो बातें हैं इनको हिंदी में अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो आपने निकट दृष्टि दोष नाम से ऐसे लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ठीक उल्टा है। मतलब यह है कि निकट जो आपकी वस्तु है पास में तो आपको ठीक दिखाई देगा और दूर की वस्तुओं में आपको देखने में परेशानी होगी। तो जैसे बच्चे हैं क्लासरूम में तो उनको ब्लैक बोर्ड से नोट टेकिंग में बड़ी परेशानी होगी। बाकी और भी उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ वहाँ जाना दौड़ना भागना, उसमें वो परेशानी महसूस करेंगे। यद्यपि उनको रीडिंग में उतनी ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो ये एक रिफ्रैक्टिव एरर का एक उसका एक टाइप है, ये शॉर्ट साइटेडनेस। एक है लॉन्ग साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष। उसमें यह है कि दूर की दृष्टि ठीक है, लेकिन आपको निकट में जो आपको बारीक कार्य करना है, पढ़ना है मान लीजिए, या आपको और तमाम शॉर्ट डिस्टेंस के जो काम हैं उनमें बड़ी परेशानी होगी। सो रिफ्रैक्टिव एरर्स होता ही है कि आपकी जो आँख की संरचना है उसमें लाइट रेज आती हैं और वो कॉर्निया के माध्यम से अंदर जाती हैं और रेटिना पर एक इमेज फॉर्म होती है किसी भी वस्तु की। सो रेटिना में कुछ डिफॉर्मिटी हो या आपकी आई लेंस है वो मान लीजिए थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया है, तो उसकी जो फोकसिंग होगी वो या तो रेटिना के पहले हो जाएगी या रेटिना के बाद में होगी। होना चाहिए एग्जैक्टली रेटिना पर। सो ये रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं जिनको कि इनके करेक्टिव मेजर्स भी हैं। हम जो है डॉक्टर्स से जाके वहाँ लेंस प्रिस्क्राइब करवाए जा सकते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेस। तो अवतल और उत्तल लेंसों की सहायता से उसमें आप जो है सुधार कर सकते हैं। सो रिफ्रैक्टिव एरर्स इज अनदर रीजन विच इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ब्लाइंडनेस अमंग चिल्ड्रन। एक बात हुई जिसमें कि हम फिर से डॉक्टर्स की मदद ले सकते हैं। देन वी गो टू दिस थर्ड रीजन इज कॉर्नियल ओपेसिटी विच इज कंट्रीब्यूटिंग 3%। इसमें जो कॉर्निया है, जिसमें मैंने आपसे कहा कि कॉर्निया का काम है कि वो लाइट को अंदर आने दे। इट अलाउज द लाइट टू एंटर द इंटरनल पोर्शन ऑफ द आई। सो यदि ये ओपेक हो जाती है, ओपेसिटी मीन्स ओपेक हो गई, ओपेक का मतलब अपारदर्शी, जहाँ तक लाइट को पास होने का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 3 तरह की वस्तुओं की बात की गई है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूलेंट एंड ओपेक। सो पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो इसमें आपका कॉर्निया जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। सर वो जो झिल्ली जिसको कहते हैं, आँख की झिल्ली जो आ जाती है, लेंस के ऊपर भी एक समझिए आप कवरिंग हो जाती कवरिंग है और वो ट्रांसपेरेंट है जिससे कि आपकी जो लाइट की रेज है that allows to enter inside the eye is the function of the cornea। अब ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए in the normal eye structure, लेकिन यदि किन्हीं कारणों से ये ओपिक हो जाए, अपारदर्शी हो जाए, मतलब अपारदर्शी हो गई का मतलब ये है कि लाइट तो अंदर आने नहीं देगी, तो फिर आपकी जो इमेज फॉर्मेशन थी उसी में प्रॉब्लम हो जाएगी और that can cause to blindness finally। यदि मान लीजिए हमको किसी भी वस्तु को देखने के लिए, यदि हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो एग्जैक्टली वो वस्तु चाहिए, उसके बाद प्रकाश की आवश्यकता है। लाइट रेज शुड फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट एंड दे गेट रिफ्लेक्टेड टू अवर आइज। इन दिस वे वी सी द ऑब्जेक्ट्स। इस तरह से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो यदि वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो यदि हमारी आंखों में न जाए तो हम फिर से वस्तु को देख नहीं पाएंगे और वस्तु को न देख पाना ही दृष्टि बाधा है। तो आप देख रही हैं कि किस तरह से कॉर्नियल ओपेसिटी भी एक
3% अपना कंट्रीब्यूट कर रही है ब्लाइंडनेस में। उसके बाद अगला जो कारण है ग्लोकोमा, एक डिजीज है, देन ट्रैकोमा, देन मेल न्यूट्रिशन। फाइनली हम लोग मेल न्यूट्रिशन में फिर से एक बार जाना चाहेंगे। मेल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि जो हमारा डाइट है यदि वो प्रॉपर ना हो, जैसे आपने विटामिन ए डेफिशिएंसी का खूब बात कही जाती है, और बच्चों में तो बहुत ही स्कूल लेवल पे इसकी चर्चा होती है कि हम भाई विटामिन ए उनको सफिशिएंट मात्रा में प्रोवाइड करें। सो यदि हमारी डाइट में विटामिन ए नहीं है या कम है तो फिर से हम हमारे लिए देखने की समस्याएं तमाम आ जाएंगी। ये मैं इसलिए इसकी खास चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये बच्चों में जो दृष्टिबाधा के कारणों में से खास है, और वो मेल न्यूट्रिशन में भी प्री नेटल में भी पोस्ट नेटल हो सकता है। जन्म के बाद बच्चे का जो डाइटरी सिस्टम है वो ठीक नहीं है, हो सकता है कि बच्चे के जन्म के पहले जब वो अपनी माँ के गर्भ में था उस समय हो सकता है उसको प्रॉपर डाइट ना मिल पाई हो। तो तमाम कारण हो सकते हैं जिस वजह से दृष्टिबाधा हो सकती है। तो ये एक कारण खास था। बाकी कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे चोट मान लीजिए लग गई, इंजरीज हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरीज हो गई, उसकी वजह से भी दृष्टिबाधा आ सकती है। तो उन परिस्थितियों में तो खैर डॉक्टर ही हमारी मदद करेंगे। बाकी का ज़्यादातर परिस्थितियों में तो डॉक्टर ही मदद करते हैं। कैटरेक्ट की सर्जरी डॉक्टर करेंगे और जो भी बीमारियां होंगी उनको भी वो हल करेंगे। कुछ परिस्थितियों में ज़रूर हम अपने आप को एडजस्ट करके या कुछ बातें आगे की जाएंगी जिसमें कि कुछ हल हो सकता है कि दृष्टिबाधा से बचा जा सके। मतलब जो ये जितने भी कॉजेज आपने लिस्ट डाउन करे हैं, इनमें से जो मैक्सिमम कॉजेज हैं उनको ठीक किया जा सकता है। जैसे कि हम रिफ्लेक्टिव एरर की बात करें तो हम लेंसेज यूज कर सकते हैं, हम स्पेक्स यूज कर सकते हैं। अगर हम कोरोनियल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो हम ओपेसिटी की बात कर रहे हैं तो हम उसको भी सर्जरी के थ्रू हटा सकते हैं, या उसका सोल्यूशन है। कैटरैक्ट को हम हटवा सकते हैं। तो इन सब का सोल्यूशन है हमारे पास। कॉर्निया की आपने अच्छा नाम लिया। कॉर्नियल ओपेसिटी के मतलब कॉर्नियल इम्प्लांटेशन होता है जी, टोटल उसको आप चेंज करके दूसरा कॉर्निया लगाया जा सकता है आर्टिफिशियल। तो ये भी एक ऑपरेशन है, माइनर सा ऑपरेशन है, तो उससे आप करवा सकते हैं। तो ये कॉर्नियल ओपेसिटी में ऑल्सो बी ट्रीटेड। और ऑल टुगेदर वी कैन से ब्लाइंडनेस जो है उसका काफ़ी आई मीन ऑलमोस्ट 3/4% ऑफ द ब्लाइंडनेस कैन बी ट्रीटेबल। ऐसा आगे पढ़ने में आएगा, और डॉक्टर्स की जो भी सलाह है वो 3/4 ऑलमोस्ट 75 to 80% जो कारण है उनको दूर किया जा सकता है, ये ऐसा कहा जाता है। और जो बेसिक जो बच्चों में बेसिक जो कॉज देखा जा रहा है वो है मैल न्यूट्रिशन, चाहे वो प्री नेटल हो या फिर पोस्ट नेटल में ज़्यादा गौर किया जाता है क्योंकि उसमें उस वक्त जो है बच्चे खान पान में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से विटामिन ए की कमी हो जाती है जो हमारे बच्चों में विजुअल इम्पेयरमेंट करती है। हमारा अपना जो लाइफ स्टाइल है, ये कि हम बच्चों पर अगर थोड़ा विचार करें तो बच्चों का जो खान पान है आजकल यदि मैं बात करूं खास तौर से, तो बच्चे बड़ा फास्ट फूड पे डिपेंड है। घर में खाने मुझे लगता है आजकल कुछ बनना कम हो गए, तो उसमें वो फास्ट फूड में वो सब न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है, इस बात पे हमको खास ध्यान देना होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि फास्ट फूड जो है हमारा बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। यद्यपि हो सकता है कि समय बचा, हो सकता है कि खाना हम घर के बाहर खाने का एंजॉय कर पाए, लेकिन हमको उस समय ज़रूर अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि हम अपना एंजॉयमेंट के वजह से कोई ऐसी खास अपने साथ इम्पेयरमेंट ले लें या जो बाद में हमारे लिए और परेशानी क्रिएट कर दे, तो ऐसा ना हो। और हमको ये खास ध्यान हो कि हमारा खास तौर से यदि आंखों की सेहत की बात हो रही तो विटामिन ए डेफिशिएंसी पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए बहुत सी बातें बहुत सी सोर्स उसके हैं। दूध है, और मुझे लगता है दूध की इनटेक हमारी डाइट में कम हुई है, और गाजर है ना, ये इस तरह की जो बातें कहें, एक कॉड लिवर ऑयल के जो होते हैं, और मछली है, इस तरह की कुछ ऑप्शंस ढूंढे जा सकते हैं। चलिए, मछली तो वो खाएगा जो खाता है, जी हाँ, जो नहीं भी है, जो शाकाहारी है, उसके लिए भी तमाम कैप्सूल्स भी आते हैं। हैं हाँ जी, आते हैं, तो उनका हम सहारा लें तो कुछ हद तक जरूर हम उससे बच सकते हैं।
सर तो आगे कंटिन्यू करेंगे हम कॉजेज़ के बारे में ही कि और इसके अलावा और कौन कौन से कॉजेज़ हैं सर जो आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? तो सर हम जी सर बेसिकली अब हम जानेंगे जो और बेसिक कॉजेज़ हैं ब्लाइंडनेस जी। के। हाँ जी, हाँ जी। पहले हमने बात करी थी विजुअल इम्पेयरमेंट के कॉजेज़ के बारे में, अब हम सीधा बात करेंगे ब्लाइंडनेस के बारे में। कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जो सिर्फ ब्लाइंडनेस रिजल्ट करते हैं, तो जानेंगे ब्लाइंडनेस के कॉज के बारे में सर। मुझे लगता है कि ये विषय हम लोगों का स्पष्ट हो जाना चाहिए अभी तक कि विजुअल इम्पेयरमेंट जो है वो ब्लाइंडनेस से बहुत अलग नहीं है, बल्कि विजुअल इम्पेयरमेंट में ब्लाइंडनेस सम्मिलित है और लो विजन की कैटेगरी भी उसमें आती है। इन दो को अलग अलग करके बात इसलिए की जा रही है क्योंकि हमारा जो PWD एक्ट है 1995 का, उसमें भी इन दोनों कैटेगरीज को अलग अलग सेपरेटली उन्होंने ट्रीट किया है और उसकी ज़रूरत महसूस की गई होगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक अध्ययन के मुताबिक प्रति 5 दृष्टिबाधित बच्चों में केवल एक पूर्णतः दृष्टिबाधित होता है। अच्छा, मतलब अगर 5 विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं तो उसमें से एक ब्लाइंड, केवल एक टोटली ब्लाइंड होगा। इसका मतलब जो 4 हैं उनके पास दे आर हैविंग यूजेबल रेजिडुअल विजन, उनके पास बहुमूल्य बचा हुआ दृष्टि है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपके यहाँ सर्वे करने आऊँ और मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके यहाँ कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति है और हमको लो विजन की कैटेगरी के बारे में पता नहीं है, तो हम हो सकता है कि जो बच्चा लो विजन था उसको कहें, या तो हम कहें कि वो ठीक है या हम कहें कि वो दृष्टिबाधित है। तो दोनों ही परिस्थितियों में हम उसकी सेवाओं को, उसके लिए दी जाने वाली सेवाओं के बारे में ठीक से जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ऐसा अनुभव किया गया कि हमारे पास दृष्टिबाधितों का जो समूह है उसमें पूर्णतः दृष्टिबाधित और मंद दृष्टि वाले लोगों को अलग अलग किया गया, इसलिए हमारे डिस्कशन में ये बात आ रही है। अन्यथा विजुअल इम्पेयर्ड में दोनों कैटेगरी सम्मिलित है। कारणों की आप बात कर रही थी, तो जो देखिए बड़े लोगों में जो खास जो कारण है वो उसके बारे में बात करें, डायबिटीज़, हमारा डायबिटीज़, उसके बाद मैकुलर डिजेनरेशन, ट्रॉमेटिक इंजरीज, कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, इंजरीज एंड इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एनी ग्लासेस, infectious causes in underdeveloped areas of the world including trachoma and leprosy, and finally vitamin A deficiency. So देखिए इसमें सबसे मुख्य और सबसे पहले जिस कारण की बात की जा रही है वो डायबिटीज़ है। और इसमें आप देखें, फिर से एक बार लाइफ स्टाइल की बात करें, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, ख़ास तौर से जो सिटीज़ में जो लाइफ स्टाइल है, इतना ज़्यादा हम लोग, मुझे लगता है, ओवरबर्डन है, या काम की इतनी अधिकता है, या कि इतने ज़्यादा तनाव है, टेंशन है, जो भी है, लाइफ स्टाइल हमारा इतना फास्ट है जिस वजह से तनाव में वृद्धि हुई है लोगों की जीवन में, और उसकी वजह से तमाम मेडिकल एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती हैं। ब्लड प्रेशर हाई किसी का हो रहा, मतलब कम उम्र का मतलब जैसे मान लीजिए मैं 17, 16, 18 साल का हूँ और मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, शुगर लेवल मेरा बहुत हाई हो गया है। फाइनली ये सभी चीज़ें जो वो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। तो एक डायबिटीज़ अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है जो तमाम बीमारियों को जन्म देगा, हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता थी उसको कमज़ोर करेगा। तो डायबिटीज़ एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला आजकल लक्षण है। इसमें शुगर लेवल लोगों का हाई हो जाता है, इसकी वजह से ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। सो फिर से हमें अपनी, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था, तो हमें अपनी डाइट पर या हमें अपनी लाइफ स्टाइल पर फिर से एक बार विचार करना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमको क्या अचीव करना है और किस बात की जल्दी है, क्या करना चाहते हैं हम। इन सब बातों पे थोड़ा मुझे लगता है विचार करना चाहिए। हालांकि मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप मेरी बात मान लीजिए, आप अपने काम छोड़ दीजिए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जिसकी जो पसंद होगी वो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर यदि उसका असर पड़ता है तो जरूर हमको इस पर विचार करना चाहिए कि क्यों यंग एज में भी, क्यों छोटी अवस्था में भी इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों डायबिटीज़, ओबेसिटी मान लीजिए, मोटापा जिसका कारण हो सकता है। अब देखिए हमारे बहुत ही छोटे छोटे बच्चे बड़े ही इसके शिकार हो रहे हैं। अब उनकी
जो उनके खास जो रोजाना के कार्य हैं वो बड़ी बाधित हो रहे हैं, वो कर ही नहीं पा रहे हैं। बच्चों, मुझे लगता है बच्चे पहले, यदि मैं अपने बचपन की याद करूं तो हम लोग बहुत खेलते थे, खेल फिजिकल जिसमें एक्टिविटीज होती थी, खेल बहुत होता था। आजकल गेम्स क्या हो गया है, कंप्यूटर गेम्स हो गए हैं, कंप्यूटर पे बच्चे बैठे हुए, इंटरनेट फुल टाइम एक्सेस कर रहा है बच्चा। तो इंटरनेट पे बैठना खराब नहीं है, इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली पिछले समय से ज़्यादा मिल रही है, जल्दी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा फिजिकल डेवलपमेंट उससे प्रभावित हो रहा है, और जो कि लंबे समय में हमको जरूर प्रभावित करेगा, जरूर परेशान करेगा। तो वो डायबिटीज़ एक मुख्य कारण है ब्लाइंडनेस का। दूसरा जो है वो मैकुलर डिजेनरेशन, मैकुला जो हमारा एक जो रेटिना का जो सेंट्रल मोस्ट पॉइंट है, उसमें डिजेनरेशन यदि हो जाता है, उसमें यदि हमारा उसकी बनावट में या उसकी संरचना में कुछ एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, तो फिर से एक बार हमारे पास ब्लाइंडनेस का कारण ये खास बनता है। और सर, जो आपने पहले एज की बात करी थी कि बहुत सारे जो हैं हमारे ओल्ड एज के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा ब्लाइंडनेस होती है, उसका भी एक कारण शायद मैकुलर डिजेनरेशन ही होगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो सेल्स जो हैं वो हमारे काम कर रहे हैं, डैमेज होती हैं डेफिनेटली। जो हमारी जो ओल्डर एज में जो हमारी ब्लाइंडनेस है उसका एक मुख्य कारण मैकुलर डिजेनरेशन है ना। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसका एक कारण ये है। और दोनों ही तरह की ब्लाइंडनेस, चाहे वो ओल्ड एज में हो या वो यंग एज में हो, हमारे लिए कंसर्न दोनों का ही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो रही है। तो फिर से हमारा कारण बनता है कि हम उसके बारे में सोचें, और यदि छोटे बच्चों में ये हो रहा है तो और ज़्यादा कंसर्न बनता है, क्योंकि हम एजुकेशनिस्ट हैं और एजुकेशन की बात करते हैं, और ओवरऑल सभी लोग बच्चों के डेवलपमेंट की खूब चर्चा होती है। हम पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम, बच्चों के भविष्य की बात हम लोग करते हैं कि भविष्य हमारा सुनहरा होना चाहिए, तो उसमें ये बात हमको देखनी होगी कि, और उनके साथ एक और बात है, यदि बचपन में दृष्टि बाधा आ जाती है तो वो हमारे साथ बहुत लंबे समय तक रहने वाली है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा। तो ब्लाइंडनेस ईयर्स, कितना समय हम उसको लेकर चलने वाले हैं, इसलिए बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कारण जरूर उसका एक मैकुलर डिजेनरेशन है। ट्रॉमेटिक इंजरीज, कई बार चोट लग जाती है आँख में, खेलते समय चोट लग जाती है, या कुछ और भी कारण हो सकता है, तो उस वजह से भी ब्लाइंडनेस आ सकती है। कैटरेक्ट की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मोतियाबिंद के कारण। एंड इंजरीज एंड इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एनी ग्लासेस, कई परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि हमारा मतलब यदि हम ग्लास प्रिस्क्राइब करें भी, हो सकता है वो भी हेल्प ना करे। ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं कि हमने इतने अपने आप को डैमेज कर लिया कि ग्लास भी हमको हेल्प नहीं कर रहा है। वैसे तो जो हमने रिफ्रैक्टिव एरर्स की बात की थी, उसमें जो ग्लासेस हम प्रिस्क्राइब करवा रहे थे उससे हेल्प होती है, लेकिन यदि हम अपने मान लीजिए हमारा जो कॉर्निया है इतना ज़्यादा ओपेक हो चुका है, तो फिर ओपेक ज़्यादा हो गया है तो लाइट रेज को अंदर आने ही नहीं दे रहा है, तो फिर इमेज फॉर्मेशन की बात भी कहाँ से आती है? वो तो तब होगा जब हमारा एंटरिंग ऑफ द लाइट रेज क्लियर हो। तो हमें अपना ये देखना होगा कि हम किस परिस्थिति में, किस भंवर में फंसते जा रहे हैं, ये हमको समझना होगा, और उसी हिसाब से हमको अपने इलाज करवाने होंगे। सर, ये जो इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एनी ग्लासेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे बेसिकली शायद उन लोगों की बात की जा रही है जो लापरवाही के कारण या फिर पैसे ना होने के कारण अपने बच्चों को चश्मा नहीं दिला पाते हैं, या फिर सोचते हैं कि थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा, तो उन आगे जाके वो उनको परेशान करता है, या फिर उनकी ब्लाइंडनेस को या फिर विजुअल एबिलिटी को और कम कर देता है। तो यहाँ शायद सर उसके बारे में भी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, यदि हम ग्लोबली देखें तो कुछ आंकड़े कुछ और हैं, यदि हम नेशनल लेवल पर देखें तो आंकड़े कुछ और हैं, और आपको ऐसा भी मिलेगा कि ऑलमोस्ट 70% जो ब्लाइंडनेस के केसेस हैं दे आर इन द डेवलपिंग कंट्रीज। अब जो आपने पैसे रुपयों से उसकी बात जो जोड़ी है, तो डेफिनेटली ब्लाइंडनेस का एक कारण गरीबी है, क्योंकि ये जो सुविधाएं हमको मिल सकती थी, ये जो आई ग्लासेस से हम अपनी मदद कर सकते थे, वो यदि हमको नहीं मिले तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे, और वो ब्लाइंडनेस की समस्या हमारे साथ परसिस्ट होगी, लंबे समय तक चलेगी। तो डेफिनेटली एक गरीबी उसका एक कारण है, और जिस वजह से जितने भी गरीब देश हैं वहाँ पर ये समस्या ज़्यादा है, जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहें या कुछ और नाम भी दे दें, इकोनॉमिकली
बैकवर्ड। पुअर या बैकवर्ड, जो नाम हम देना चाहें वो दे लें, वो उसका एक कारण है। तो वो भी हमको देखना होगा। वो जो आपने कहा कि क्यों नहीं हम उनको क्लास प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो दिस पॉवर्टी इज वन ऑफ देम रीजन इज, उसका एक कारण ये भी है। देन फाइनली ट्रकोमा एंड लेप्रोजी क्योर्ड, मतलब कोई भी बीमारी जो हमारे लिए लाइलाज हो गई है, जिसका हम इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, वो कहीं भी हमारे किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है, और यदि वो आँख को अफेक्ट कर रही है तो ब्लाइंडनेस की तरफ हम बढ़ेंगे। फाइनली वी हैव गॉट दिस विटामिन ए डेफिशिएंसी, जिसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं काफ़ी। हमारी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, बच्चों में ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि भाई इनकी विटामिन ए की जो पूर्ति है वो पूरी होती रहे, ताकि कम से कम उस वजह से तो ब्लाइंडनेस ना आए। ये तमाम कारण है। तो अभी बेसिकली हमने जाना, पहले हमने कारण जाने जो विजुअल इम्पेयरमेंट को कॉज करते हैं, जिसमें हमारा बेसिकली विटामिन ए की डेफिशिएंसी था, ग्लूकोमा और काफ़ी और जो प्रीनेटल और पोस्टनेटल कॉजेज़ हैं। फिर हमने कुछ हेरिडिटरी कॉजेज़ जाने, और कैटरैक्ट जिसमें से एक बहुत ही मुख्य कारण था जो 81% विजुअल इम्पेयरमेंट कॉज करता है। उसके बाद हमने विजुअल इम्पेयरमेंट का जो एक भाग है ब्लाइंडनेस, उसके बेसिकली कौन कौन से कॉजेज़ हैं उनके बारे में जाना, जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी, कैटरैक्ट और ग्लूकोमा और ये सब कारण हमने जाने। इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।
मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि आप हमारे एक्सपर्ट से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी राय लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर, जो है 1800112008। हमारा फ़ोन नंबर है 26511613 और हमारा फैक्स नंबर है 26511609। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जो है Rehab Council, that is REHABCOUNCIL.nic.in, और आप अपने सजेशंस या फिर अपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमें मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, जो है rehabstd, that is rehabstd@ndc.vsnl.net.in। तो हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट के बारे में, हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में बात करी हमने। उसके बाद हमने जाना कि हम विजुअल एक्विटी को कैसे अलग अलग विजन को कैसे अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेसिस पे हम विजन को कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें एक था हमारा विजुअल एक्विटी और दूसरा था हमारा फील्ड ऑफ विजन। उसके बाद हमने जाना बेसिक कॉजेज़ क्या क्या हैं जिनकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। फिर हमने कुछ आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स के बारे में जाना जिनके बेसिस पे कोई भी टीचर या फिर पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट है या नहीं। उसके बाद हमने बेसिकली ब्लाइंडनेस की बात की और ब्लाइंडनेस के कॉजेज़ के बारे में जाना कि अगर हम स्पेसिफिकली ब्लाइंडनेस को देखें तो कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जो ब्लाइंडनेस करते हैं। उसके बाद हम अभी जानेंगे नेचर ऑफ ब्लाइंडनेस के बारे में। तो सर आप बताएंगे कि बेसिकली नेचर ऑफ ब्लाइंडनेस क्या होता है? जी, नेचर ऑफ ब्लाइंडनेस की जहाँ तक बात है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। जो विजुअली इम्पेयर्ड साथी है उसका नेचर क्या होगा विजुअल इम्पेयरमेंट का, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा। और मे बी कि उसको, जैसे मैंने आज शुरू में जब कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि हो सकता है कि मैं सामने बिल्कुल ठीक देख पा रहा हूँ लेकिन साइड बाई साइड हमको नहीं दिख रहा है। इट मीन्स साइड बाई साइड देखने का मतलब है पेरिफेरल विजन। मीन्स यदि जो हमारा दाहिने तरफ का एरिया है उधर हमको दिखता है, बाएं तरफ भी दिखता है, लेकिन यदि ये मान लीजिए नहीं है तो हम कहेंगे कि पेरिफेरल विजन लॉस है। सेंट्रल लॉस भी हो सकता है कि हमको जहाँ मैं देखता हूँ, जहाँ हमारा फोकस है वहाँ हमको देखने में समस्या है। सो नेचर डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि उसको क्या प्रॉब्लम है। सो मैं आपके सामने ये पढ़ता हूँ इसको। दो दिस नेचर ऑफ द विजुअल लॉस वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल्स। जनरली वी हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट। वन इज लिमिटेड फील्ड ऑफ विजन, being unable to see the sides or up and down. Some loss of central vision, limiting the ability to see the fine detail. Acute short-sightedness, seeing the world as a continuous blur. And uncontrollable oscillations of the eyeball, leading to an inability to see objects clearly. And finally night blindness. तो ये let us take one by one. This limited field of vision, as I've told you, a person is able to see even if he is focusing at the wall in front of his eyes and at the eye level. He is able to see what is happening at the right and what is happening at the left. So this whole area is his field of vision. If it is restricted, this is one kind of nature of blindness. एक दृष्टिबाधा का प्रकृति ये हो सकती है कि उस बच्चे में साइड्स में नहीं दिखता, बीच में दिखता है। द सेकेंड में भी द लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, हो सकता है कि केंद्रीय जो उसकी दृष्टि है उसी में उसको समस्या हो। तो केंद्रीय दृष्टि की समस्या ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेगी, क्योंकि आप देखिए कि जैसे आप किसी वस्तु को देखते जाएंगे और आप ये आपने एक वस्तु देखी, अभी आपको ये नहीं दिख रही, फिर आपने देखने के लिए अपने आप को घुमाया और दूसरी वस्तु पे फोकस किया, आपको वो नहीं दिख रही। तो सेंट्रल विजन लॉस जो है वो ज़्यादा हमको अफेक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू पेरिफेरल विजन लॉस। हालांकि हमारा कहना ये नहीं है कि दो में से कौन कम महत्वपूर्ण है और कौन ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि सेंट्रल विजन लॉस, क्योंकि हमारा फोकस उस एरिया में होता है, तो यदि वो है तो ज़्यादा हमारे लिए समस्या हो सकती है। सो फर्स्ट नेचर इज दिस। सेकेंड इज the person is unable to see the central vision, limiting ability to see the fine detail. What he is supposed to do, उसको बहुत से कार्य विजुअल फंक्शंस करने होते हैं जिसमें वो अपने आप को अयोग्य पाएगा, करने के योग्य नहीं पाएगा यदि उसको सेंट्रल विजन नहीं होगा।
एक और एग्जांपल मैं आपके बड़ा ही रोचक सा लेना चाहूँगा। मान लीजिए कि ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने लिखा वॉशिंगटन, WASHINGTON, वॉशिंगटन। वहाँ पे यदि हमारा सेंट्रल विजन लॉस है तो हो सकता है कि WA मुझे दिखाई दे और फाइनली हमको TON दिखाई दे, बीच में SING नहीं दिख रहा, SHING नहीं दिख रहा। सो हम उसको वॉटन पढ़ सकते हैं। हमारा क्या है कि हमारा सेंट्रल विजन लॉस है, तो वॉशिंगटन में भी रेड एज वॉटन। एट द सेम टाइम यदि हमारे फील्ड ऑफ विजन लॉस है और मान लीजिए हमारा लेफ्ट साइड का फील्ड ऑफ विजन का लॉस है, तो आई कैन रीड इट शिंगटन because I am not able to see WA. Then again, if my peripheral vision at the right side is limited, then I may be reading it as washing. So TON is not visible to me. So इस वजह से मैं ये इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस किस तरह की दृष्टिबाधा की प्रकृति हो सकती है। पहला सेंट्रल विजन लॉस हो सकता है, दूसरा पेरिफेरल विजन लॉस हो सकता है, तीसरा एक्यूट शॉर्ट साइटेडनेस। जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस दो तरह की परिस्थितियां हैं। इसमें ये निकट दृष्टि के दोष हैं। इसका मतलब ये है कि पास की जो चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन दूर जो वस्तुएं वो नहीं देख पा रहे हैं। तो ये हमारे खास इस तरह का एक नेचर हो सकता है। एक दूसरा जो लॉन्ग साइटेडनेस की मैंने आपसे बात की, हो सकता है वो हमारे साथ समस्या हो। नेचर में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि दृष्टिबाधा के कारण हमको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देन वी हैव अनकंट्रोलेबल ऑसिलेशंस ऑफ द आई बॉल। जो हमारी आँखों की जो एक बॉल है, आँखों का स्ट्रक्चर है पूरा, वो ऑसिलेट करता रहता है, वो दोलित होता रहता है, वो एक जगह पर फिक्स नहीं होता। ऐसा कई बार आपको देखने को मिलेगा। एक बीमारी का नाम है निस्टेगमस। उसमें ऐसा होता है कि वो बच्चे की जो पुतली है वो ऐसे ऐसे हिलती रहती है, तो उस समय उसको फोकस करने में बड़ी परेशानी होती है। तो एक ये नेचर हो सकता है कि दृष्टिबाधा का ये प्रकृति हो कि भाई उसके साथ क्या समस्या है। देन फाइनली नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी एक तरह का नेचर है ब्लाइंडनेस का। नाइट ब्लाइंडनेस की जहाँ तक बात है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि डिम लाइट कंडीशंस में, जहाँ इल्यूमिनेशन कम है, प्रकाश कम है, मान लीजिए कि यदि मैं बात करूँ शाम जबकि सूरज ढल गया है उसके बाद की बात करूं, तो नेचुरल लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी जिसका नॉर्मल विजन है वो सभी वस्तुएं देख सकता है। वो जो एक रिफ्लेक्टेड सी लाइट आती है, भले ही लाइट सोर्स हमारे सामने ना हो, लेकिन लाइट फिर भी आती रहती है, वो उस डिम लाइट कंडीशन में यदि मैं नहीं देख पाता हूँ, उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और इसको हिंदी में रतौंधी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। रतौंधिया जो है गाँव की भाषा है, ये वहाँ पर उसको आती है कि मतलब ये हुआ कि शाम के समय जब लाइट कम है तो दिखाई नहीं देता। ऐसी समस्या भी हो सकती है। इसके बारे में खास बात ये कही जाती है कि इट इज़ नॉट ट्रू ब्लाइंडनेस। ये नाइट ब्लाइंडनेस यद्यपि इसका नाम है, लेकिन ये ट्रू ब्लाइंडनेस नहीं है। और ब्लाइंडनेस क्यों नहीं है वो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। वो ये है कि ब्लाइंडनेस की जो डेफिनेशन है, ये जो ब्लाइंडनेस की जो कैटेगराइजेशन जिस आधार पर हम लोग कर रहे हैं, वो ये है कि क्या उसकी विजुअल एक्विटी वो 6/60 और उससे ख़राब है, क्या उसका फील्ड ऑफ विजन बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं कही गई है, बल्कि यहाँ पर केवल ये कहा गया कि भाई यदि प्रकाश कम है तो दिखता नहीं है, यदि प्रकाश ठीक है तो बिल्कुल ठीक दिखता है। इट मीन इट इज नॉट ट्रू ब्लाइंडनेस, ऐसा इसके बारे में कहा गया। सो दीज आर सम नेचर ऑफ ब्लाइंडनेस यू कैन से। सर, तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है उसमें जो बेसिकली क्या रीजन है उसका? सिर्फ वो नेचुरल लाइट में ही देख पाते हैं, लाइक हमारे जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं उनमें वो नहीं देख पाते, ऐसा कुछ है सर? नहीं, लाइट अगर है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, देन दे आर एबल टू सी। यदि लाइट नहीं है, आप ऐसा कह सकती हैं कि जब लाइट नहीं होता है तो कोई नहीं देख सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए हम लाइट से अचानक किसी डार्क रूम में जाते हैं, मान लीजिए सिनेमा हॉल में हम गए, थोड़ी देर के लिए हमको नहीं दिखता, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमारी आंखें एडजस्ट हो जाती हैं और हमको चीजें दिखने लगती हैं। वहां तो लाइट नहीं है, इसका मतलब जो नॉर्मल विजन वाले व्यक्ति हैं वो लाइट नहीं है तब भी देख सकते हैं, है ना। ये हो सकता है कि उतनी क्लैरिटी से बातें न दिखें, लेकिन
मैं जैसे आपको कह रहा था, विजुअल एक्विटी इज द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी द डिटेल ऑफ द पिक्चर। हो सकता है कि जैसे मान लीजिए सामने हमारे एक सीन है जिसमें एक घर है और एक गाय बंधी हुई है और एक साइकिल खड़ी हुई है, बच्चा खेल रहा है, ऐसा एक चित्र है मान लीजिए मेरे सामने, और लाइट बहुत कम है, तो जो नॉर्मल विजन वाला व्यक्ति होगा उसको कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं होगा, उसे एक हेजी सी पिक्चर दिखेगी। हो सकता है कि वो ये ना बता पाए कि दीवारों पे रंग कैसा है, साइकिल किस कलर की है, बहुत डिटेल में साइकिल में घंटी लगी है नहीं लगी है, ये ना बता पाए, लेकिन कुछ उसको जरूर आइडिया होगा। लेकिन जो नाइट ब्लाइंडनेस वाला जो व्यक्ति होगा वो उसके बारे में नहीं बता पाएगा। ये इसमें अंतर है। लाइट कैसी भी हो, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, इफ लाइट इज देयर देन द पर्सन विद नाइट ब्लाइंडनेस कैन आल्सो सी, otherwise he is not able to see. This is night blindness. Okay, these are the basic nature of visual impairment which we talked about. Like we talked about visual acuity, then the field of vision, then we talked about the various like night blindness. Now we'll talk about the different types of blindness. जी, टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस की जहाँ तक बात है तो इसमें एक कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाती है। और देखिए कलर ब्लाइंडनेस में फिर से एक बार बात क्या है कि the person is not able to differentiate between the colors, और कलर्स भी खास कलर्स, जैसे मान लीजिए रेड एंड ग्रीन कलर्स में डिफ्रेंशिएशन मुश्किल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कई बार ऐसा होता है कि हमको मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि हमको तो ट्रैफिक सिग्नल्स देखना है, उसके अनुसार गाड़ी चलानी है, और इफ आई एम नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू कलर्स देन डेफिनेटली मैं गलत गाड़ी चला सकता हूँ। तो उस परिस्थिति में वो कलर ब्लाइंडनेस होगी। मैं आपको इसकी टेस्टिंग के बारे में जैसे कहूँ कि बहुत एक कोई पिक्चर है जिसमें पिक्चर और उसकी जो बैकग्राउंड है उसमें मान लीजिए कम अंतर हो तो देखना मुश्किल होगा। यदि मैं बहुत लाइट येलो कलर का बैकग्राउंड रखूं और कोई नंबर लिखूं या कुछ ABCD लिखूं जो कि उससे थोड़ा सा डार्क येलो कलर से लिखूं, तो नाइट ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति हो सकता है क्या लिखा है ना पहचान पाए, लेकिन जो नॉर्मल विजन वाला होगा वो पहचान लेगा। तो यहाँ पर केवल कलर आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ पर भी फिर से आप देखेंगे तो कोई विजुअल एक्विटी मेजरमेंट या फील्ड ऑफ विजन की बात नहीं की जा रही है जैसे नाइट ब्लाइंडनेस में थी। तो ये चाहे वो नाइट ब्लाइंडनेस हो या कलर ब्लाइंडनेस हो, दो दे आर द टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस, इसी They तरह are not called as true blindness. जी, इसी तरह से एक स्नो ब्लाइंडनेस होती है। स्नो ब्लाइंडनेस में क्या है कि मान लीजिए कि मेरा एक्सपोजर अल्ट्रावायलेट रेज से हो जाए तो कई बार हमारा देखना प्रभावित हो जाता है, उसको स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जहां पर बेल्डिंग होती है, बेल्डिंग से जो लाइट्स निकलती हैं उसको लोग कहते हैं कि भाई उसको डायरेक्टली आंखों से ना देखा जाए, क्योंकि अगर हम उस पर ज़्यादा ध्यान दे देंगे या वो लाइट रेज हमारी आंखों में चली जाएंगी तो वी मे गेट सम प्रॉब्लम, कुछ हमारे साथ समस्याएं हो सकती हैं, तो वो स्नो ब्लाइंडनेस है। तो ये टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस में जो है तमाम आपके साथ जो बातें की जा रही हैं वो दे आर नॉट द केसेस ऑफ ट्रू ब्लाइंडनेस as the visual acuity and the field of vision is not Affected. जी हाँ, वो परिस्थितियां हैं, लाइट नहीं है तो नहीं देख पा रहे, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई। कलर आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस हो गई। सर तो जो कलर ब्लाइंडनेस है वो बेसिकली क्या सिर्फ प्राइमरी कलर से रिलेटेड होती है या फिर किसी भी कलर से रिलेटेड हो सकती है? हाँ, ये डेफिनेटली जो है मेन जो बात है वो जैसे मैंने आपको बताया रेड एंड ग्रीन है। बाकी के जो मैचिंग शेड्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है वहाँ भी हमको आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है कि ये वेदर इट इज़ वॉयलेट और ब्लू, यहाँ पर भी हो सकता है कि बच्चा ये परेशानी महसूस करे कि रंग की पहचान नहीं कर पा रहा है। सो ऐसा है। बाकी की हाँ जी प्लीज। Is there any like further categorization of color blindness, like if we say कि कोई एक बच्चा है उसे सिर्फ प्राइमरी कलर का है, लाइक उसे रेड नहीं पता चलता या फिर ग्रीन नहीं पता चलता, या फिर हम कहें कि जो बच्चा कलर ब्लाइंड होता है उसको
कहीं भी कलर डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आती है, लाइक उसको लाइट येलो या डार्क येलो में डिफरेंशिएशन नहीं पता चल रहा है या ब्लू और वॉयलेट में नहीं पता चल रहा, तो इनमें से कौन सा सही है? हाँ, बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाएंगे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो लाल और हरे की पहचान नहीं कर पा रहा है। एट द सेम टाइम अ पर्सन मे बी हु इज फेसिंग डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग द मैचिंग, आई मीन ऑलमोस्ट मैचिंग शेड्स। हो सकता है कि कलर रिकॉग्निशन की यदि मैं बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि किसी को रेड कलर पहचानने में परेशानी है, किसी अन्य को वॉयलेट एंड ब्लू में डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई कलर ब्लाइंड है तो उसको सबके सब कलर नहीं दिख रहे होंगे, यही ऐसा मैं नहीं आपसे है, ऐसा कंफर्म नहीं करना है। चाहती हाँ, थी। तो उसमें बातें हैं जो मतलब एक खास रंग की पहचान में दिक्कत आएगी उसको। सो वी हैव वैरायटी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस आल्सो। या अच्छा, थोड़ी सी और चर्चा इसमें आगे बढ़ाएंगे तो दो तरह की और भी ब्लाइंडनेस की बात की जाती है, लीगली ब्लाइंडनेस और उसके बाद एजुकेबल, है ना, मतलब जो एजुकेशन में जिसमें समस्या आती है। तो लीगली ब्लाइंडनेस की जहाँ तक बात है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि हमारी विजुअल डिसेबिलिटी की परसेंटेज ये जो डॉक्टर्स जो हमारी जो सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं उसमें परसेंटेज मेंशन होती है कि भाई कितने परसेंट आपको विजुअल डिसेबिलिटी है। तो ये इफ इट इज मोर देन 40% तो आपको कुछ कानूनी तौर पर सुविधाएं प्राप्त हैं। यदि वैसा उसके एक मेजरमेंट भी है 20/200 जो विजुअली एक्यूटी मेजरमेंट की मैं बात कर रहा था। यद्यपि मैंने पहले 6/60 6/6 ऐसी बात की थी। दे 6 and 60 आर इन मीटर्स, नाउ 20/200 आर इन फीट की बात हो रही है। सो 20/200 मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू 6/60। सो यदि ये उसका 20/200 उसकी मतलब विजुअल एक्यूटी के मेजरमेंट है, देन ही इज कैटेगराइज्ड एज लीगली ब्लाइंड। तो उसको कानूनी तौर पर तमाम सुविधाएं मिलेंगी। जैसे आपने सुना होगा कि नौकरियों में आरक्षण, तो वो सुविधा मिलेगी, या कि एडमिशन के समय में, या जैसे आपने सुना है कि हमारे पास तमाम स्कूल ऐसे हैं जो केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के बारे में मतलब सोचते हैं, उन्हीं की शिक्षा के बारे में वो ध्यान देते हैं। तो वहाँ पर किन बच्चों का एडमिशन होगा, then the child may be needing a certificate, medical certificates. Then if it is, the disability is more than 40%, then okay, he is treated as visually impaired. So all the facilities which are available for a visually impaired person can only be accessed if the person has the disability certificate. Legal blindness. Legal Yeah, blindness, definitely. which is basically said as when the person has less than 40% of the More than 40%. more than 40% Yeah. of the visual impairment, or less than 20/200 vision. या यदि ऐसी उसकी परिस्थिति होगी तो वो डिसेबिलिटी की परसेंटेज पर डिपेंड करेगा कि वो व्यक्ति लीगल ब्लाइंड होगा या नहीं होगा। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में आपसे मैंने बताया। नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, स्नो ब्लाइंडनेस, देन लीगल ब्लाइंडनेस, कुछ टाइप्स के बारे में अभी हमने आपसे डिस्कस किया। इसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से किस तरीके से हम ब्लाइंडनेस को डायग्नोस कर सकते हैं। जो तरीके हमने पहले भी आइडेंटिफिकेशन और कॉजेज में जाने हैं, उन्हीं को हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं व्हाट आर द बेसिकली डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज फॉर ब्लाइंडनेस। या दिस blindness is diagnosed by the visual acuity testing in each eye individually and by measuring the visual field or peripheral vision. Pupil may have blindness in one eye, that is unilateral blindness, or both eyes, bilateral blindness. Temporary blindness differs in causes from permanent blindness. यहाँ पर जो बात की जा रही है डायग्नोसिस की, this is again done on the measures of visual acuity. विजुअल एक्यूटी की मेजरमेंट ही की जाएगी, और हम जैसे मैंने आपसे कहा था कि विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट कैन बी डन विद बोथ आईज ओपन, कैन बी डन विद वन आई ओपन, लेफ्ट आई और राइट आई, कैन बी डन विद स्पेक्स ऑन, स्पेक्स ऑफ। कई तरह से विजुअल एक्यूटी की मेजरमेंट ली जाती है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स जो सामने आ रहे हैं, दैट इज यूनिलेटरल ब्लाइंडनेस एंड बाइलेटरल ब्लाइंडनेस इफ द ब्लाइंडनेस इज इन वन आई ओनली। एक बात मैं यहाँ पर और भी कहना चाहूँगा, द person who is one eyed
कई बार ऐसा होता है, ये ऐसे सवाल कभी कभी पूछते हैं लोग कि मान लीजिए कि किसी घटना या चोट आदि से एक आंख में, मतलब एक आंख में हमारी दृष्टिबाधा आ गई पूरी तरह से, तो क्या वो व्यक्ति दृष्टिबाधित माना जाएगा? ये बात मैं इसलिए खास यहाँ पर उठा रहा हूँ क्योंकि यूनिलेटरल ब्लाइंडनेस एंड बाइलेटरल ब्लाइंडनेस की बात यहाँ पर आई है। तो वन आइड पर्सन इज नॉट यूनिलेटरल ब्लाइंड। ये बात खास यहाँ देखनी होगी कि यदि एक आंख में भले ही पूरी तरह से उसका -PL हो गया हो, मतलब वो एक आंख से इतनी चोट उसको लग गई उससे बिल्कुल ही वो उसको दिन और रात का भी ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी आंख यदि उसकी बिल्कुल ठीक है और दूसरी आंख से उसका विजुअल एक्यूटी के मेजरमेंट और जो तमाम कैटेगरीज, जो तमाम कॉन्सेप्ट्स की बात हमने आपसे की, फील्ड ऑफ विजन, वो सभी ठीक है, देन द पर्सन विल नॉट बी ट्रीटेड एज विजुअली इम्पेयर्ड। यहाँ पर जो यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल की जो बात है, दैट इज कंसीडर्ड इफ योर वन ऑफ द आईज इज क्लोज्ड एंड द टेस्ट इज बीइंग विद द सेकंड वन, वेदर इट इज राइट और लेफ्ट। यदि आपकी दाहिनी आंख से टेस्ट हो रहा है, दैट इज विजुअल एक्यूटी, ब्रैकेट में वो R लिख देंगे और L लिख देंगे। कभी कभी आपको ऐसे मिलेगा 6/6 ब्रैकेट में R, 6/6 ब्रैकेट में L, RELE एंड 6/6 BE, बोथ आईज। मतलब आगे वो वहां पर मेंशन होता है कि भाई ये राइट आई है, लेफ्ट आई है, क्या है। तो यदि वो विजुअल एक्यूटी का मेजरमेंट एक आंख पे किया गया है, दैट इज यूनिलैटरल। ब्लाइंडनेस केवल तभी होगी जब विजुअल एक्यूटी 6/60 और उससे वर्ष होगी। परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि एक आंख में बिल्कुल ही नहीं दिख रहा लेकिन दूसरी से बिल्कुल ठीक दिख रहा है। मुझे खूब ध्यान है, बचपन में वो गुल्ली डंडा लोग खेलते हैं, वो किसी एक बच्चे की वो लग गई गिल्ली, एक आंख बिल्कुल ही मतलब खराब हो गई, लेकिन दूसरे से ठीक है, तो वो पर्सन विजुअली इंपेयर्ड नहीं है क्योंकि उसका विजुअल एक्यूटी का मेजरमेंट ठीक है, उसका फील्ड ऑफ विजन ठीक है। ओके सर, तो जो यूनिलैटरल ब्लाइंडनेस है वो तब माना जाता है जब आपका एक आई विजन ठीक है और दूसरे आई विजन की विजुअल एक्यूटी में प्रॉब्लम है, या फिर वो -PL में है या फिर 6/60 से कम है, तो हम उसको यूनिलैटरल ब्लाइंडनेस के लिए विजुअल एक्यूटी के मेजरमेंट एंड फील्ड ऑफ विजन की मेजर जरूरी है, चाहे वो एक आंख से हो, चाहे वो दो आंख से हो, चश्मा पहन के हो, चश्मा उतार के हो, कुछ भी हो, वो मेजरमेंट जरूरी है। बट अगर आपकी एक आंख काम ही नहीं कर रही है तो वो विजुअल इम्पेयरमेंट में नहीं आएगा और दूसरी बिल्कुल ठीक कर रही है, दूसरी हमारी आंख बिल्कुल ठीक है, एक हमारी मान लीजिए नहीं ठीक है, तो हमारा विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट नॉर्मल रेंज में आता है, देन आई एम ए पर्सन विद नॉर्मल विजन। ये बात इसमें है खास तौर से। तो बाइलेटरल ब्लाइंडनेस के बारे में सर और जानकारी देंगे आप अभी? हाँ, बाइलेटरल ब्लाइंडनेस का मतलब ये है, देन अगेन दैट विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग इज डन विद द बोथ आईज ओपन, दोनों आंखों ओपन है। फिर भी यदि वो उस तरह की आपके पास कंडीशंस आती हैं कि विजुअल एक्यूटी का मेजर उस रेंज में आता है, ब्लाइंडनेस की रेंज में आता है, देन इट इज बाइलेटरल ब्लाइंडनेस। ये इसमें खास बात कही गई है। ओके सर, तो बेसिकली अगर हम ब्लाइंडनेस को डायग्नोज करना चाहते हैं तो पहली इंपॉर्टेंट बात है कि हम विजुअल एक्यूटी मेजर करेंगे, जिसको हम दो तरीके से मेजर करते हैं। एक बायलैटरल ब्लाइंडनेस होता है हमारा और एक यूनिलैटरल। यूनिलैटरल में हम एक आंख का हमारा जो काम है वो बिल्कुल ठीक करती है और दूसरी आंख की विजुअल एक्यूटी 6/60 या फिर उससे कम होती है। जब हम बायलैटरल की बात करते हैं तो हमारी दोनों आंखों की विजुअल एक्यूटी चेक की जाती है और उनकी दोनों आंखों की विजुअल एक्यूटी अगर 6/60 या फिर उससे कम आ रही है तो हमारा जो पर्सन है या फिर जो चाइल्ड है वो विजुअली ब्लाइंड माना जाता है। तो सर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे सर हम अब यहाँ पे जी। तो सर आप कौन कौन सी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं बेसिकली इन स्टूडेंट्स के लिए वो जानेंगे? जी, ब्लाइंडनेस आने पे एक्चुअली क्या है कि ब्लाइंडनेस की कुछ प्राइमरी लिमिटेशंस हैं। ब्लाइंडनेस होने से क्या होता है, उसके लिए एक स्टडी है, बहुत ही फेमस स्टडी है, लोएनफील्ड महोदय उन्होंने किए हुए हैं। तो उस लिमिटेशंस में उन्होंने ये कहा कि एबिलिटी टू मूव हमारी बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, वातावरण से चीज़ों को ग्रहण करना, ये हमारी बड़ी ही मतलब लिमिटेड बातें हो जाती हैं। तो कुछ बेसिक लिमिटेशन ब्लाइंडनेस के बताए गए हैं जो खास तौर से हमको देखने होंगे। और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की यदि बात करें कि शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है ब्लाइंडनेस का, तो डेफिनेटली यदि मैं दृष्टिबाधित हूँ
तो हमारे लिए जो सामान्य नॉर्मल बच्चों के साथ जो शैक्षिक तमाम बातें हो रही हैं एक क्लास में, हमारे लिए ब्लैक बोर्ड का कोई यूज़ नहीं है, वाइट बोर्ड का कोई यूज़ नहीं है यदि मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। हाँ, यदि मैं लो विजन हूँ तो हो सकता है कि मुझे प्रॉपर सीटिंग एंड ऑल कुछ किया जाए, हमारे साथ कुछ सुविधाएं की जाए, तो देन मे बी दैट आई एम एबल टू यूज सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वाइट बोर्ड। लेकिन ये हमारी इम्प्लीकेशंस हैं एंड आई विल रीड इट आउट फॉर यू। सर, अभी हमने जाना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में, उसके बाद हम इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं उसके बारे में जाना, कौन कौन सी बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पे हम इन कैटेगराइज करते हैं, जिसमें हमारा विजुअल इक्विटी और फील्ड ऑफ विजन की बात थी। उसके बाद हमने कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को, वो जाना हमने। उसके बाद हमने बहुत सारे कॉजेज़ की बात की, फिर हमने ब्लाइंडनेस की बात करी सिर्फ, फिर हमने ब्लाइंडनेस के कॉजेज़ के बारे में जाना, उसके नेचर के बारे में जाना और कितने तरह के ब्लाइंडनेस होते हैं ये जाना। इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan.
Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू मेरा सूरज है तू This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू आ मेरी आँखों का तारा है तू She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे एक्सपर्ट से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी राय लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर जो है 1800-112008। हमारा फ़ोन नंबर है 265-11613 और हमारा फैक्स नंबर है 265-11609। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जो कि है Rehab Council, that is REHABCOUNCIL.nic.in। आप अपने सजेशंस और टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमें मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर जो है rehabstd, that is rehabstd@ndc.vsnl.net.in। तो हमने बात की अभी तक कॉन्सेप्ट के बारे में कि विजुअल इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम विजन को किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, उसके बाद हमने जाना कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको लेकर हम विजन को कैटेगराइज करते हैं, उसके बाद हमने वेरियस कॉजेज़ के बारे में जाना, फिर हमने बात की ब्लाइंडनेस की, उसके बाद हमने नेचर ऑफ ब्लाइंडनेस और वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस के बारे में जाना। हम बात कर रहे थे एजुकेशन इम्प्लीकेशन के बारे में, तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस के बारे में आगे जानते हैं हमारे सर से। सर बोलिए। ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के लिए लेट अस डिस्कस द व्हाट अ स्कूल कैन डू और व्हाट अ स्कूल शुड डू। द फर्स्ट वन इज द अर्ली इंटरवेंशन। जितनी जल्दी हो सके सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि बच्चे में दृष्टिबाधा है। ये काम जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। सो अर्ली इंटरवेंशन इज वन liability on the school, we can say, or the local authorities to conduct. The second is the technology in the form of computers and low vision, optical and video aids enable many partially sighted, low vision and blind children to participate in regular class activities. Third is the law requires that the school provide accessible instructional material to all students who need them. This include large print material, books on tape, CD and braille books. So let us discuss it one by one. अर्ली इंटरवेंशन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि इसकी जितनी जल्दी पहचान होगी दृष्टिबाधा की बच्चे में उतना अच्छा होगा। तो ये हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, स्कूल अथॉरिटीज़ की ड्यूटी बनती है, पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि हम जल्दी से जल्दी उसको पहचानें कि बच्चे में दृष्टिबाधा है और हम उसको इंटरवेनिंग प्रोग्राम्स में ले जाएं, चाहे वो स्कूल में एजुकेशन हो या मेडिकल उसकी हेल्प हो, जो भी हो वो हम उसको दें। So first and foremost is important is the early intervention. The second is the technological use. आजकल की शिक्षा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे मैं आपसे बात करूं कि जो दृष्टिबाधित बच्चा है, पूर्णतः दृष्टिबाधित जो बच्चा है, उसके लिए जो बुक्स हैं उसको हम ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराएं या हम ई टेक्स्ट में उपलब्ध कराएं, CD में उपलब्ध कराएं। ये फिर से स्कूल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि उनकी सभी बुक्स को, सभी सिलेबस की सभी बुक्स को, पूरा मटेरियल शुड बी अवेलेबल इन द एक्सेसिबल फॉर्म, वेदर इट इज़ इन ब्रेल
or it is in the CDs or e-text form. Then finally we also require some technological use of in the form of computers and aids also, जो हमारी दृष्टिबाधित या मंद दृष्टि वाले बच्चों के लिए जो ख़ास तकनीकी की जो इस्तेमाल हो रहा है उनका भी प्रोवाइड कराना स्कूल की जिम्मेदारी है। और ये हमारी कुछ एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस हैं जो कि जब हमारे पास दृष्टिबाधित बच्चा आता है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा एज ए टीचर और एज ए स्कूल अथॉरिटी। These we have to conduct one by one: early intervention, technological advancement and its uses, and finally the material should be available to that particular accessible form में accessible form में चाहिए, whether it is in braille बच्चों के दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, मंद दृष्टि बच्चों के लिए हम प्रिंट बुक की किताब इस्तेमाल कर सकते हैं, provided कि they get that technological advanced magnifiers or the CCTV etc. These facilities, if they are there, then they can again access to the educational material. So ये कुछ educational implications हो सकते हैं। ब्लाइंडनेस के लिए एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस जो हैं वो बेसिकली है कि हमारे जो बुक्स हैं उनको हम ब्रेल लिपि में प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑडियो एड्स जो होते हैं जो बेसिकली ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लाइंडनेस के बारे में हमने बहुत जानकारी हासिल करी। अभी हम आगे बढ़ते हैं लो विजन के बारे में जानने के लिए। तो पहले हम जानेंगे कि लो विजन बेसिकली होता क्या है। Low vision is a term that denotes a level of vision that is 20/70, that is if we change it into meters then again 6/18 as I told you earlier, or worse, and cannot be fully corrected with the conventional glasses. Low vision is not the same as blindness. Unlike a person who is blind, the person with low vision has some useful sight. However, low vision usually interferes with the performance of the daily activities such as reading or driving. A person with low vision may not recognize images at a distance or be able to differentiate colors of similar tones. जैसे कि इसमें बताया गया, इसमें कोई विजुअल एक्यूटी के मेजरमेंट की जहाँ तक बात की गई 6/18 एंड वर्स, जैसे मैंने आपको रेंज की बात की थी कि 6/60 और वर्स दे आर टोटली ब्लाइंड, 6/60 and better but worse than 6/18. This range, if we are falling in this category, then we are categorized as low vision. ये इस श्रेणी में हम लोग आएंगे, लो विजन वाले बच्चे इसमें आएंगे। और ख़ास इसकी डेफिनेशन में जो बात की जा रही है वो ये है कि इसकी बड़ा ही रेस्ट्रिक्टेड विजुअल फंक्शनिंग है, ये मेन बात है। डिस्पाइट ऑफ ऑल द पॉसिबल करेक्शंस दैट और मेडिकल दिस एडवांसमेंट ऑलरेडी डन, सभी कुछ उसके साथ हो चुका है, उसके बावजूद भी यदि हम अप टू द मार्क, और अप टू द मार्क मीन्स अप टू द नॉर्मल विजन लेवल पे नहीं आ पाते हैं तो हम उसको मंद दृष्टि या लो विजन की कैटेगरी में रखेंगे। ये है इसके साथ। तो सर बेसिक जो मेन डेफिनेशन है सर वो आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, यहाँ पे लो विजन आर दोज हु सफर विजुअल एक्विटी बिटवीन 20 upon 60, that is 6/18 or worse as I have told you. Then 6/18 to 6/60 in a better eye. Better eye means the eye which is functioning in a better way. We have got two eyes. कभी कभी ऐसा होता है कि एक आंख में हमारी दृष्टि क्षमता ज़्यादा होती है, तो यदि एक आंख में भी यदि हमारी वो परिस्थिति बनती है और उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, then we are categorized as low vision. And also all the possible and best possible correction already done, and the field of vision is restricted to only 20 to 30 degrees as I have told you earlier, कि उनका जो दृष्टि का क्षेत्र है वो 20 से 30 डिग्री के बीच में यदि है, तो फिर से वही दो बातें, विजुअल एक्यूटी एंड फील्ड ऑफ विजन। यदि हमारा 6/18 और उससे ख़राब है विजुअल एक्यूटी, या हमारा रिस्ट्रिक्टेड फील्ड ऑफ विजन है 20 to 30 डिग्री, तो हम लो विजन कैटेगरी में आएंगे। और ऑन टॉप ऑफ इट हमारी विजुअल फंक्शनिंग इज़ वेरी लिमिटेड, वेरी रिस्ट्रिक्टेड, एंड हमारी मे बी इन रीडिंग, पढ़ने में हमको बहुत परेशानियाँ आएंगी, देन वी आर कैटेगराइज्ड एज लो विजन। तो हमने बेसिकली लो विजन होता क्या है और उसके बाद इसकी जो रिकग्नाइज्ड डेफिनेशन है उसके बारे में जाना। इनके तहत जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स लो विजन के होंगे उनके बारे में आगे जानकारी लेते हैं।
what are the basic characteristics of low vision, sir? Yeah. Individuals with low vision do not have the same characteristics as totally blind individuals. Number one point we have to keep in mind कि इनकी जो प्रॉब्लम है वो ब्लाइंडनेस से सेम नहीं है. The second point is individuals with low vision do not have the same abilities as the people with normal vision. Third is individuals with low vision have unique needs that set them apart from either population. Low vision के साथ खास बात क्या है कि unless and until we have the full information about low vision, we are not in a position to categorize the person as low vision. हम या तो उसको पूर्णतः दृष्टिबाधित की श्रेणी में रखने लगते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो बच्चा स्कूल फॉर द ब्लाइंड बॉयज में चला जाए, या हम उसको ये समझते हैं कि पूरी तरह से ठीक है, ये बाकी के सामान्य बच्चे जैसे होते हैं उनके साथ ये पढ़े. सो द प्लेसमेंट ऑफ द चाइल्ड इज मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड. यहाँ पर हमको उसकी यूनिक नीड्स के बारे में समझना होगा कि वो न तो पूर्णतः दृष्टिबाधित है और न ही पूर्णतः दृष्टिवान है, तो उसकी अपनी अलग जरूरतें होंगी. और इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बात करेंगे. यूनिक नीड्स ऑफ लो विजन, दैट विजन शुड बी एक्यूरेटली मेजर्ड, विजन मस्ट बी रिस्पेक्टेड, and an individual with low vision should have access to a wide variety of tools. Vision should be accurately measured. Vision की जो उसका फील्ड ऑफ विजन है या जो उसका विजुअल एक्यूटी है उसको हम ठीक ठीक मेजर करेंगे. विदाउट मेजरिंग द एग्जैक्ट विजुअल एक्यूटी मेजर एंड फील्ड ऑफ विजन वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्लाइंडनेस एंड लो विजन. और उस वजह से हो सकता है कि हमारा जो मंद दृष्टि जो बालक था वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ जाए. हम उससे पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि तुम अपने दृष्टि का जितनी भी तुम्हारे पास है उसको छोड़ दो और पूरी तरह से दृष्टिबाधित की तरह ट्रीट करो और पूरा मटेरियल ब्रेल में पढ़ो, जबकि उसके पास अच्छा खासा विजन है. एंड एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि उसके पास रेस्ट्रिक्टेड विजन है, हो सकता है कि वो आने जाने में उस विजन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हम उसको पूर्णतः दृष्टिवान मान रहे हैं और उससे ये आशा की जा रही है कि आप ब्लैक बोर्ड से पढ़ना लिखना भी करिए. सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद लो विजन. उसके लिए उनकी विजन की ठीक ठीक मेजरमेंट. द सेकेंड वन इज दैट वट एवर विजन ही हैज शुड बी रिस्पेक्टेड. उसके पास जितना भी विजन है उसका हम सम्मान करें और उसके लिए जो हम जो प्रोग्राम डेवलप करें एज ए टीचर या जो भी एक्टिविटीज कराएंगे तो हम उसकी दृष्टि का उपयोग करें. सम्मान करें का मतलब उपयोग करें, या हम विजुअल टास्क उसको भी दें, हम उसको बिल्कुल दृष्टिबाधित ना बना दें. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बच्चे को बिल्कुल ही उसकी जितने विजन है उसको भी निग्लेक्ट किया जा रहा है, या फिर उसकी उतनी विजन से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है. सो दिस एस्टिमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. And finally we have got this third point is the individual with low vision should have access to a wide variety of tools. जितने भी low vision aids की अभी बात शायद आप करेंगे. low vision aids जो हैं, जितने भी tools हैं, चाहे वो प्रिंट पढ़ने के लिए मैग्नीफायर हो या प्रिंट को मैग्नीफाइड फॉर्म में लाने के लिए ऑन स्क्रीन आई एम टॉकिंग अबाउट वो सीसीटीवी हो, या मैग्नीफायर्स भी कई तरह के होते हैं, हैंड हेल्ड है या कि वो यहाँ पे स्पेक में माउंट कर लेते हैं. मतलब जो उसकी खास जो उसकी आवश्यकता है वैसे उसको वो जो टूल्स हैं उसको यदि मिले तो मुझे लगता है उसके विजन का रिस्पेक्ट भी होगा. एंड एट द सेम टाइम दैट विजन व्हाटएवर दैट विजन ही हैज इज आल्सो यूज्ड. सो यूजेबिलिटी ऑफ द विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर कि जो मंद दृष्टि वाला जो बच्चा है वो उसको इस्तेमाल करे, उसको वो निगलेक्ट ना करे, ये हमें खास देखना होगा. तो मंद दृष्टि वालों की प्रॉब्लम यूनिक है, ना ही वो दृष्टिबाधितों जैसी है ना ही वो दृष्टिवानों जैसी है, और यहाँ कहीं न कहीं हम उसको बहुत ही निगलेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से मुझे लगा, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, कि PWD एक्ट में उस लो विजन की कैटेगरी को पूरा का पूरा अलग ट्रीट किया गया, इसकी आवश्यकता महसूस की गई. सर तो उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दिलवाने के लिए उसको अलग रखा गया है. और जैसा कि आपने बताया कि जो
पर्टिकुलर जो इक्विपमेंट्स हैं जो लो विजन बच्चों के लिए होते हैं उनका यूज़ अगर हम करें तो ये एक सोल्यूशन है उनको उनकी विजन का एक तो पर्टिकुलर रिस्पेक्ट दिलवाने का और उसका पर्टिकुलर यूज़ जो हम जितनी विजन है उसका हम कर सकें। तो हम आगे जानेंगे लो विजन एड्स के बारे में। सर आप बात कर रहे थे। जी हाँ, लो विजन एड्स जो हैं वो दो तरह की हैं बेसिकली, ऑप्टिकल एड्स एंड नॉन ऑप्टिकल एड्स। ऑप्टिकल एड्स वो हैं जिसमें लेंस आदि का प्रयोग है, जैसे वो मैग्नीफायर की बात मैंने की, सीसीटीवी की मैंने बात की, वो जो है आपकी रीडिंग मटेरियल को एनलार्ज करके आपके सामने ले आएगा। कुछ नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, मुझे लगता है कि उनकी मदद से भी हम मंद दृष्टि वालों की बहुत ज़्यादा सहायता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि एक रीडिंग स्टैंड है, वो रीडिंग स्टैंड ऐसा होता है और वो मतलब बुक को हम बजाय कि बुक पर झुक के पढ़ें, बुक को हम अपनी आंखों के पास ले आए सो दैट माई पोस्चर इज ओके, ऐसा हम उसको बैठ के पढ़ पाएंगे। सो रीडिंग स्टैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैं आपको बहुत ही सरल नॉन ऑप्टिकल एड के बारे में बताऊंगा क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा यूजिबिलिटी है। होता ये है कि चूंकि मैं मंद दृष्टि वाला हूँ तो मैं कई बार पढ़ते समय लाइन एस्केप कर जाता हूँ। पहली लाइन पढ़ रहा था, फिर मैं तीसरी लाइन में आ गया, दूसरी छूट गई, क्या हो गया, ऐसा कभी कभी हो जाता है। सो ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए क्या है कि एक काली दफ्ती में लूँ और उसमें एक पतली सी विंडो काट लूँ। वो विंडो केवल इतनी चौड़ी हो कि एक लाइन पढ़ी जा सके। यदि मैं ऐसा कर सकूं, मुझे लगता है बहुत आसान काम है एक पतली सी स्लिट उसमें से काटना, और उसको मैंने पेज के ऊपर रख लिया तो होगा क्या कि केवल जो लाइन हमको पढ़नी है वही दिखाई देगी, बाकी सब वो ढका रहेगा। जब मैंने वो लाइन पढ़ ली तो उसको थोड़ा खिसकाया, अगली लाइन पे आ गई। इसको टाइपोस्कोप कहते हैं और ये बहुत ही आसान है बनाना। इसका रेडली अवेलेबल कोई भी दफ्ती काट के इसको बनाया जा सकता है, इवन कागज को हम काट के उसको बना सकते हैं। सो ये केवल हमारी इनसाइट पर, सूझबूझ पर निर्भर करेगा अध्यापक की कि वो कैसे हमारे बच्चों की मदद कर सकता है। नॉन ऑप्टिकल एड्स के तहत ये बातें आती हैं। बाकी ये है कि यदि उसको चमक से परेशानी है, लाइट की ग्लेयर से परेशानी है, तो हम उसको ग्लेयर से दूर रखें। कई बार ऐसा होता है कि हमको लाइट ज़्यादा चाहिए होती है। कुछ मंद दृष्टि बालकों की परेशानी ये है कि उनको लाइट थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो टेबल लैंप दे दिया। लेकिन कुछ मंद दृष्टि वाले बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको लाइट से ही परेशानी है, लाइट जो उनके पास ज़्यादा आएगी तो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो उनकी लाइट का, जी हाँ, या कम से कम फोकस ऐसा हो जो आंखों पे ना हो, ऑब्जेक्ट पे हो। तो इस तरह की एडजस्टमेंट हम उसको नेचुरल लाइट यदि वो पसंद करता है तो क्लासरूम में कुछ, जैसे क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन की भी बात अगर समय होगा तो करेंगे, उसमें हम उसकी सीटिंग अरेंजमेंट पे बात कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर समय हम उसको ऑप्टिकल एड ही प्रोवाइड करें। कई बार हमें अपनी सूझबूझ से नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस के साथ भी हम उसके साथ अच्छा काम कर सकते हैं। सर तो ये बेसिकली हम क्लासरूम में जो भी मैनेजमेंट टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं या फिर क्लासरूम में जो ऐसे नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं तो इनको अवेलेबल करवाना उतना आसान होता है हमारे लिए। तो उनके बारे में हम जान रहे थे कि कौन कौन से। और सर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं सर, तो उसको कैसे थोड़ा सा फेर बदल करके या मॉडिफाई करके हम लो विजन बच्चों के लिए एक्सेप्टेबल बना सकते हैं? जी, आजकल खूब चर्चा इंक्लूसिव एजुकेशन की है, जहाँ पर कि आपके पास पूरी क्लास है और कुछ बच्चे दृष्टिबाधित हैं या किसी और भी बाधा से ग्रसित हो सकते हैं, तो फोकस करते हैं एक लो विजन बच्चे पर कि आपकी क्लास में एक है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशंस में फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज सीटिंग, ब्लैक बोर्ड, जनरल डेकोर, स्टोरेज एरिया, विजुअल डिस्प्लेज। Second point is based on lighting conditions. Third is learning material, large print books, ruled and squared papers, felt and sketch pen, writing frames, and finally low vision devices, optical and non-optical aids. Classroom organization में let us take one by one. Physical environment, that is seating, is the most important and most easy also. If we have got one low vision student in my class, and if he is requiring some natural light or more light, I can say, then he may be given a seat near the window. यदि ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको फर्स्ट रो में बैठा लें, कि यदि मान लीजिए उसको नोट टेकिंग में परेशानी है ब्लैक बोर्ड से, वाइट बोर्ड से, तो हम उसको फर्स्ट रो में सीट दे सकते हैं।
The seating arrangement may be one area of this classroom organization. Then all this blackboard also, as I have told you earlier also, कि blackboard से note taking में हम उसको पास में ला सकते हैं. Storage area, कई बार बच्चों की वहाँ पे छोटी सी, मुझे लगता है कि आजकल की ऐसी कॉन्सेप्ट है कि क्लास लाइब्रेरी होती है, मतलब बच्चों की क्लासरूम में ही उनके लिए एक थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइडेड है जिसमें वो अपनी ज़रूरत की किताबें आदि वस्तुएं रख सकते हैं. सो वो स्टोरेज एरिया ऐसी जगह हो जहाँ पर इजीली एक्सेसिबल हो या उसकी हाइट के अकॉर्डिंग हो, ऐसा हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं. देन विजुअल डिस्प्लेस, यदि हम अपने क्लासरूम में कुछ मॉडल चार्ट आदि लगाते हैं तो बच्चों की, हालांकि ये सब बहुत सामान्य बातें हैं, हम इनका ध्यान रखते हैं, बच्चों की ऊंचाई के अनुसार विजुअल डिस्प्ले करें. और ख़ास हम अपने उन मंददृष्टि बच्चों का ध्यान रख सकते हैं कि भाई उनकी हाइट के अनुसार रख लें. फॉन्ट साइज बड़ा करें. फॉन्ट साइज बड़ा करें, जी हाँ. लार्ज प्रिंट की बात आगे आ रही है. लर्निंग जो मटेरियल है, लार्ज प्रिंट बुक्स, जैसे आपने फॉन्ट साइज की बात करी, तो डेफिनेटली यदि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑल वी कैन एनलार्ज द साइज ऑफ द लेटर्स, ये हम फॉन्ट साइज उसको बढ़ा सकते हैं. पेन हमारा ऐसा हो, मोटी कलम जिसे हम कहते हैं, स्केच पेन हो या फेल्ड पेन हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइन हमारी रूल्ड हो, मतलब पेपर हमारा रूल्ड हो, लाइन वाला पेपर हो, तो उसमें कई बार ऐसा होता है जैसे हमने नोट टेकिंग किया, लिखे, तो हमने लिखना शुरू किया, ऊपर से हम नीचे चले जाते हैं, टेढ़ा लिखना शुरू कर देते हैं. सो इसको अवॉइड करने के लिए यदि वो पंक्ति जिसमें खिंची होती है, लाइन वाली खिंची, यदि वो हमारा पेपर है तो वो बच्चों के लिए हेल्प होगा. और वो लाइन भी कई बार ऐसी होती है कि सामान्य बच्चों के लिए बड़ी ही महीन लाइन होती है, उसको पहचानना मुश्किल होता है, तो उसको थोड़ा हम मोटा कर दें. ऐसे ही तमाम सुझाव, ऐसे तमाम छोटे मोटे काम अध्यापक के द्वारा किए जा सकते हैं जिनसे बच्चों की बहुत हेल्प होने वाली है. लाइटिंग कंडीशन, बच्चे की ज़रूरत के अनुसार, बच्चे की क्या ज़रूरत है उसको, whether he is requiring more light or he is having problem with the light. कई आपके उनको फोटोफोबिया बच्चों को जिनको होता है, हिंदी में सूरजमुखी उनको कहते हैं, उनको लाइट से ही प्रॉब्लम होती है, लाइट पे जाते ही उनको तमाम अपनी वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं. सो इफ़ ही इज़ हैविंग प्रॉब्लम विद द लाइट देन ही विल बी सीटेड अवे द लाइट, अवे फ्रॉम द लाइट. और यदि उसको ज़्यादा लाइट चाहिए तो नियर द लाइट. इट मीन्स ऑल द needs of that low vision person with this, regarding with this lighting arrangement is different and they are depending on individual to individual. उनकी अलग अलग ज़रूरत है, उसी के अनुसार हम काम करेंगे, उसी के अनुसार रखेंगे. ऑप्टिकल एंड नॉन ऑप्टिकल एड्स की हम लोग चर्चा कर चुके हैं. सो इसके बारे में तो बेसिकली हमने जाना, सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट से शुरू किया कि विजुअल इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट होता क्या है, उसके बाद हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट को, उसकी बात की. फिर हमने जाना कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेसिस पे हम विजुअल इम्पेयरमेंट को कैटेगराइज करते हैं. फिर हमने बहुत सारे कॉजेज़ के बारे में जाना जिनके तहत हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी बच्चे को या फिर किसी हमारे इंडिविजुअल को विजुअल इम्पेयरमेंट है या नहीं. उसके बाद हमने ब्लाइंडनेस की बात की, फिर हमने नेचर ऑफ ब्लाइंडनेस की बात की. नेचर ऑफ ब्लाइंडनेस के बाद हमने वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस के बारे में जाना, जिसमें हमारा कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस था बेसिकली. उसके बाद हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हम स्पेशल प्रोफेशनल्स के लिए, वो है हमारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन. क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं जो हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए, हमने उनकी बात की. फिर हमने लो विजन के बारे में जाना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है लो विजन का, डेफिनेशन के बारे में जाना. उसके बाद जो बेसिक क्लासरूम टेक्निक्स हैं, क्योंकि जैसे कि आजकल हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एक जनरल क्लासरूम में हम किस तरीके से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके लो विजन स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, इस बारे में हमने जानकारी हासिल की. अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक और एक नए एक्सपर्ट के साथ. धन्यवाद.